So let's start our lecture number 3 on work energy and power. So work energy power में हम लोगों ने we have seen mostly what is work देखा हमने. We have seen हमने start किया था. We have seen the interplay between energy, and then from the energy you're getting the force. With the force you're doing a work, and because of that work your energy got transferred to the energy on which you are applying the force. ठीक है, हमने interplay देखा था how energy, force, work and transfer of energy is been playing. उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्क. वी हैव गॉट डीप इनटू द वर्क. तो वर्क के अंदर हमने देखा था वर्क इज इन द फिजिक्स द वर्क इज डिफरेंट देन द रियल लाइफ, एंड वी हैव गॉट इनटू द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ वर्क. We have seen all the parameters that has been involved in work. और लास्ट लेक्चर में we were studying about different kind of a work because of different forces. हमने ग्रेविटेशनल देखा था. वी हैव सीन द फ्रिक्शन फोर्सेस. उसमें हमने स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन देखा था. देन वी हैव सीन द वर्क डन बाय our constraint forces. We have seen the work done by pseudo forces. So that is work done by the spring forces. So that is what we have done in the last lecture. So in the last lecture one doubt came, so I just have to clarify that doubt to you, and then we'll move on to today's chapter. Okay, so एक spring force में एक doubt आया था हम लोगों को. We just clarify that doubt and then we'll move on. So यहाँ पे जो spring force में हमारे को doubt आया था, that is this one. So actually this graph when I was making the notes, तो graph मैंने गलत ले लिया था, and during that time I got confused when I was explaining it to you. So actually this graph is a spring force graph. Spring force graph means कि when your spring is this in a relaxed position. ठीक है, when you compress this spring here, so this is, you can say this is your spring in relaxed position. When you compress, when you elongate your spring, so it will get stretched. ठीक है, now the spring force will be this direction, negative direction when you stretch it. So this is my x initial. ठीक है, this is my x initial and this is my now x final. ठीक है, now another one is when I compress my string. ठीक है, when I compress my string. ठीक है, so now this is my x final. I have compressed my, so x final, I have compressed my spring. ठीक है, so these are the three cases. यहाँ पे spring force कैसे लग रही हुई, in positive direction, and my x from x initial to x final is my negative direction. ठीक है, this direction we are taking negative. ठीक है, and this direction we are taking positive negative. तो यहाँ पे जब मेरी स्प्रिंग यहाँ पे इनिशियल लेवल रेस्ट पे थी, देन आई हैव एलोंगेटेड माई स्प्रिंग. एलोंगेशन का मतलब मेरा x जो है पॉजिटिव है एंड स्प्रिंग फोर्स इज बाय नेगेटिव. दिस इज माई स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, सो ये जो ग्राफ है दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स ग्राफ अराउंड द रिलैक्स पोजिशन. ठीक है, तो फोर्स इज लाइक रिस्टोरिंग. फोर्स कैसे है, इट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, अगर मेरा x बढ़ेगा इस डायरेक्शन में, so my force will be increasing in opposite direction. ठीक है, that you can see it from there. अगर मेरा x बढ़ रहा है इस direction में, so my x is increasing in this direction. my force is also in for x इस direction में बढ़ रहा है from x initial to x final. Force is also increasing, but force is negative. If you see, we are in the negative region of the force. So force is increasing but in the negative direction, and force is increasing that is linearly with x. ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी that is x initial ये है और x final ये है. that is the problem because this is my relaxed position. from the relaxed position अब मैं x initial ये है, now x final. from the relaxed position now again I am compressing my string. that means उसका जो x होगा that is x is going to decrease. x is going to be negative direction में we are going to compress it. ठीक है, whenever we are going to compress in negative direction, frictional force of spring will come in this direction. ठीक है, force of spring will be positive. so that is what we have done. so this is x initial and this is my x final. okay, so that was the confusion yesterday. so यहाँ पे क्या होगा, हमारा force is increasing x initial to x final. ठीक है, force is increasing when I'm going to compress. ठीक है, force कैसे increase कर रहा है, जैसे इससे मेरा with the directly proportional to x, and we have seen this direction is positive. so my x direction is negative. because we have seen now this is my x initial and now I'm compress the string to this position. so this is my x initial and this is my x final. so I have decreased my x from x initial to x final. this is my force of spring. ठीक है, so that is what we have done. this graph is my spring force graph with respect to x. ठीक है, now in both the cases we were studying work done will be negative in both the cases. that is was we have to see that. so यहाँ पे हमने देखा force is my negative
x is my positive, so obviously my work done comes out to be negative. ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया it comes out to be negative. सेकेंड केस में क्या हमने देखा, x initial x final. So इस केस में क्या हुआ, मेरा x is negative but my force is positive. ठीक है, so इस केस में भी my force is positive, x is negative, work done comes out to be negative. ठीक है, so हमने फिर further हमने एक statement दी थी, whenever we go from relaxed to any deformed position. ठीक है, जब भी हम रिलैक्स से डिफॉर्म पोजीशन पे जाते हैं, हमारा वर्क डन विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ठीक है, और जब भी हम डिफॉर्म्ड से रिलैक्स स्टेट की तरफ आते हैं, वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव मेड द स्टेटमेंट आफ्टर स्टडिंग दिस. ओके, सो दैट वाज द कन्फ्यूजन कि ये नॉमेनक्लेचर में थोड़ा इशू हो गया था. दिस इज एक्स इनिशियल, दिस इज एक्स फाइनल. ठीक है, सो दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम इन दिस थिंग. सो वी हैव क्लैरिफाइड इट टुडे. ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू our today's lecture. So today's lecture is we are going to study. अभी हमने वर्क देख लिया. Now we are going to study the energy. ठीक है, energy part we are going to cover today's lecture, or maybe tomorrow's lecture also we are going to cover up the energy part, then we'll shift it to the power part. ठीक है, so energy we are going to study two set of energy. हम लोग mechanical energy पढ़ना है because we are studying the mechanics. So we are going to study two set of energy which we call a energy of motion and the potential energy. ठीक है, energy of motion is by kinetic energy, that is what we are going to see, kinetic energy. Then we are going to see वर्क एनर्जी थ्योरम. सो इट इज़ हैविंग अ वाइडर एप्लीकेशन. अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे थे, वी वर सॉल्विंग इट थ्रू द फोर्स इक्वेशन. फोर्स से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, एंड फ्रॉम दैट एक्सेलरेशन वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्किप दिस स्टेप. फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ वी आर गोइंग टू फाइंड द वेलोसिटी बाय अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल इन एन ईजी वे, बिकॉज उसमें इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ नहीं होगा. बिकॉज एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाने के लिए यू हैव टू यूज़ द इंटीग्रेशन एंड ऑल. सो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम में यू डोंट हैव टू यूज़ द इंटीग्रेशन, सिंपल मेथड, और यू जस्ट अप्लाई दैट एंड यू कुड एबल टू सॉल्व द ट्रिकियर प्रॉब्लम इन अ ईजी वे. फोर्स मेथड में क्या होता है, मल्टीपल फोर्सेस इट्स बीन देयर. ठीक है, तो मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं उनकी. यू हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी डायरेक्शन, यू हैव टू कंसीडर द ईच एंड एवरी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन, then you take out acceleration in each and every direction, uski velocity in each and every direction, then you do the resultant and you get the velocity. But here you don't have to do all those things. You can easily get the value of v after some time t or after some distance traveled. So you can get those values. So we'll see the application of work energy theorem. So it is most of the question that we have done with the force and all in the last till Newton's laws of motion. We are solving the questions from फोर्स इक्वेशंस ओनली, न्यूटन्स लॉस के सेकेंड लॉ लगा के. बट नाउ ऑनवर्ड्स विल सी के विल सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम टू न्यू टर्म्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. विल सी व्हाट आर दिस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या हैं, एंड वाई वी आर डूइंग द डिस्कशन ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्या है डिस्कशन कर रहे हैं, और कौन कौन सी हमारी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं इन द इंट्रैक्शन फोर्सेस दैट वी हैव स्टडीड टिल टुडे. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ रिलेटेड विद द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, सो ये चार टॉपिक आज हमारे, वी आर गोइंग टू स्टडी देम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हम वी हैव बीन स्टडिंग दिस टॉपिक फॉर सो लॉन्ग, सो इट इज़ नथिंग न्यू इन दिस टॉपिक. इट इज़ अ एनर्जी पोजेस्ड इन मोशन. ठीक है, इट इज़ अ एनर्जी ऑफ मोशन. ठीक है, जितना आप में वेलोसिटी होगी उतनी आपकी एनर्जी होगी. ठीक है, सो इट इज़ अ एनर्जी पोजेस्ड इन मोशन. मोर स्पीड यू हैव मोर एनर्जी एंड यू रिक्वायर अ हायर ब्रेकिंग एफर्ट. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी, basically the formula for kinetic energy is my half mv square. So mv square, so that is my kinetic energy. So velocity is my motion. Okay, so that is the energy contained in the motion. So we have seen in our example also, when you push this block, you applied your energy, आपने अपनी energy यहाँ से निकाल के इस block में लगाई, and the blocks after some distance traveled as the block started moving with some velocity 0, from velocity is equal to 0 से velocity v तक, so 10 meter per second से move करने लगा हो. So now it is having the velocity of, it is having the kinetic energy or the energy of motion. ठीक है, now it is having the kinetic energy or the energy of motion it is having. Okay, so that is how the energy got transferred. Your chemical energy got transferred into kinetic energy, right? So how this term kinetic energy has come up, it is nothing but work done is your force into
डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को आप यहाँ से यू जस्ट पुट इट m इंटू a इंटू d, और एक्सीलेशन को यू कैन राइट इट एक्सीलेशन एज फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ठीक है, यहाँ से ad की वैल्यू आप उठा के 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डाल दो। सो वर्क डन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो कैन से सो 1/2 m इंटू ad आपने डाल दिया 1 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपने डाल दिया। सो दैट इज़ व्हाट माय वर्क डन गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो ए वर्क एनर्जी थ्योरम that we are going to see in the next slide, but this is how you got the kinetic energy। अगर initial value आपकी 0 है, so final value comes out to be half m v square। so that is how you get the kinetic energy, right? So we have the term velocity in this, so velocity is a frame of reference dependent term। okay, so we have to see कि from which reference you are seeing, on that basis आपकी kinetic energy भी change हो जाएगी। ठीक है, if you are seeing this object moving and this object is moving on a platform with some velocity, and this object, if you see this object from here and if you see this object from here, so both the places you say kinetic energy दोनों की अलग होगी। यहाँ पे जो kinetic energy होगी it will be zero, कोई energy of motion नहीं है, because for this person this object is at rest, but for the person at a ground ये object move कर रहा है with the velocity v, so we can say it is having a kinetic energy of half m v square। तो v square वाली जो term है that is frame of reference dependent। okay, so हम लोग देखते हैं कि if an object is moving with velocity v1 here, ठीक है, and we are observing it from ground observer o1 and observer o2 which is moving here with velocity v2। ठीक है, now for this observer this is my kinetic energy will be simple, इसको velocity v1 से move करता हुआ दिखेगा। for the observer 1 the motion of this mass will be the velocity of this mass will be velocity of this mass will be v1 only, because it is with respect to ground, so we'll just put the kinetic energy half m v1 square। अब इसको कैसे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट 2 को, इट विल बी रिलेटिव, इसका जो मोशन होगा रिलेटिव टू दिस होगा, और ये भी मूव कर रहा है अपनी वेलोसिटी से। सो व्हाट वी हैव टू अप्लाई द रिलेटिव मोशन का प्रिंसिपल। रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या करते थे, वी मेक द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। इसको स्टेशनरी करने के लिए वी अप्लाई v2 हेयर, और सेम इसको भी v2 से सुपर इम्पोज कर देते थे। ठीक है, सो इट इज़ v2, इट इज़ नॉट माइनस v2। ठीक है, बिकॉज हमने डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज कर दिया इसकी, v1 की डायरेक्शन है, v2 की डायरेक्शन है ऑलरेडी, माइनस v2 नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया और इसका सुपर इम्पोज करके ये आ गया। सो अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये v1 का और v2 का रिजल्टेंट मेरा ये आएगा v12। सो इसको अगर मैं स्टेशनरी कर दूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा v12 से। ठीक है, अब इसकी जो नाउ वी हैव टू टेक दिस इज माई डायरेक्शन एंड आई नाउ हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ रिजल्टेंट। इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज नॉट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दिस इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, वी हैव टू टेक द वेक्टर। इसका वेक्टर पहले वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, वी नो हाउ टू डू दैट। इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वी हैव अप्लाइड दिस वन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। वी हैव सीन इट इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने देखा था एनालिटिकल में वेक्टर वाले सीरीज़ में, हमने वेक्टर जब लेक्चर करा था तो उसके अंदर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में वी हैव सीन हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो इसका 2v1 v2 और इन दोनों के बीच में एंगल, दिस वन और दिस वन, इन दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, ये माइनस v2 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, v1 और v2 के बीच में अगर थीटा है तो दिस विल बी पाई माइनस थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे आगे मेरा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2v1 v2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो 2v1 माइनस 2v1 v2 बिकॉज कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में इट इज़ नेगेटिव, राइट। सो this is my magnitude here, so this will be my magnitude here। okay, so v1 minus v2 इसका magnitude का whole square 1/2m, so that will be my kinetic energy of 1 with respect to 2 when the second object is moving with velocity here। okay, so it will not be v1 square minus v2 square। okay, so that's not the way we have to do, we have to do it velocity if someone is saying with different frame of reference, so velocity we have to observe it with that observer और उसका वेक्टर सम लेके we have to find the resultant of it। okay, now kinetic energy we can write it in the scalar product of 2 because हमारे पास half m
वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर क्या है मेरा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को वी स्क्वायर को वी हैव सीन इन अगेन वेक्टर लेक्चर रेफर करो, आप देखो जाके वेक्टर लेक्चर, देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल. सो यहाँ पे वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इनटू डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में मैंने इसको कर दिया. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसका, वी मैग्नीट्यूड, वी मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, बिकॉज दोनों सेम वेक्टर हैं, दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री इज माई 1. सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज माई दोनों का मैग्नीट्यूड स्क्वायर. सो दैट इज़ व्हाट यहाँ पे मैग्नीट्यूड था मेरा हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया. और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दिस टू वेक्टर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड वी कैन से ये मास विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वेलोसिटी का स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. अगर नेगेटिव नेगेटिव इस डायरेक्शन में भी अगर मैं नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ, दोनों नेगेटिव आएंगे, सो दैट विल ऑल्सो गिव मी द पॉजिटिव आंसर. सो दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट. So what is the relationship between kinetic energy and linear momentum? Both define the motion. One is defining your quantity of motion, okay. One is define the energy of motion. ठीक है. So quantity of motion कितनी होती थी हमारी linear momentum, P is equal to m into v, और kinetic energy क्या है मेरी half m v square. यहाँ से v की वैल्यू निकाल दो, P पाए, put the value here in this, and we have got kinetic energy in terms of momentum is P square by 2m. इसको इधर ले जाओ and you got momentum in terms of kinetic energy as root m k. So numericals वगैरह में डायरेक्ट फॉर्मूला you can apply and you can solve कि आपको मोमेंटम दे रखा है, you have been asked to find out the kinetic energy, और आपको kinetic energy दे रखी है, you can be asked to find out the momentum. So you can apply this direct formulas and all, okay. Now we'll see our next topic is work energy theorem. So work energy theorem में हमने लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि how energy got transferred by the work done, that is what we are going to see it analytically here. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक इंट्यूशन वाली फील ली थी कि whenever you apply so this block is there, it is at a rest here. ठीक है, रेस्ट पे रखा हुआ है, that means v is equal to 0. when you apply a force on it, okay, ठीक है, you are having some energy, from that energy you apply a force on it. ठीक है, इसका फोर्स अप्लाई करने से it move through a distance, some distance s move किया. ठीक है, अब ये प्रोसेस जो फोर्स इंटू डिस्टेंस का है, दैट इज माई वर्क डन. आपने वर्क डन किया इस पर, नाउ इट इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी, आई कैन से इट इज़ मूविंग सम वेलोसिटी v. ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि आपने जो वर्क डन किया, नाउ इट gained its kinetic energy or the energy of motion, or the energy will be stored into it, that we are going to see in the coming part of our lecture when we are going to study mechanical energy. जब हम देखेंगे potential energy देखेंगे, but right now it gained the kinetic energy. So that's how we are going to observe, we are going to do it analytically. अभी तक हमने देखा कि we are seeing it intuitively कि how the work got transferred into energy. अब हम देखते हैं इसका analytically how it is done. So suppose a particle is there, one force, one particle है, हमने देखा था कि we can have the multiple particle, it can apply to multiple particle with multiple forces, one particle with multiple forces. This is like quite a flexible theorem. ठीक है, बहुत अच्छी theorem है. With this you could able to solve many of the mechanics problem. ठीक है, so इसके लिए क्या होता है ना, मेरा best thing इसमें क्या है कि you can apply one single force है अगर single particle पे, there also you can apply multiple forces on single particle लग रही है, there also you can apply system of particles है, और सब पे if you are applying multiple forces लग रही हैं on that system of particle, there also you can apply this theorem. ठीक है, so we'll see one force one particle. ठीक है, one force one particle means के ये पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग इन दिस पाथ, इस पर फोर्स लग रही है इन दिस डायरेक्शन. सो वी हैव सीन अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एट एवरी पोजीशन द थीटा इज वेरिंग, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द वर्क डन विद डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज एफ इनटू एस. वी हैव टू यूज़ द इंटीग्रेशन. एक स्मॉल डी एस कंसिडर करेंगे, इस डी एस को मूव कराने के लिए इस फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ा, विल फाइंड दैट. ठीक है, छोटा सा वर्क डन निकालते हैं इस डी एस मूव कराने के लिए इस पार्टिकल को. सो डी एस मूव कराने के लिए पार्टिकल को वर्क डन करना पड़ा फोर्स इंटू स्मॉल डी एस. ठीक है, यहाँ पे वर्क डन ये आ गया, यहाँ पे मैंने फोर्स को लिख दिया m इंटू ए, और ए डॉट डी एस को मैंने लिख दिया, इसको ए को लिख दिया वी डी वी बाई डी एस. ठीक है, डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, मैं यहाँ पे आ गया वी डॉट डी वी. अब इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने v1 से v2, यहाँ से मेरे को यहाँ तक लेके जाना है v1 से v2, एंड आई गॉट दिस वैल्यू एज 1/2 half m v2 square minus v1 square. So this is nothing but my kinetic energy at position 2 at position 1. ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरी kinetic energy थी, ठीक है, इस पे मैंने कितना वर्क डन किया जो कि इसकी kinetic energy यहाँ पे चेंज हो गई. ठीक है, इट कैन बी
बोथ द वेज, ठीक है। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और अगर इसका वर्क डन अगर नेगेटिव है सो इट विल गेट अ रेस्ट हेयर, ठीक है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ है, कुछ वेलोसिटी है, आई हैव डन द वर्क डन ऑन दिस, ठीक है, आई पुश्ड दिस फ्रॉम द हेयर एंड द वर्क डन इज बीन डन ऑन इट, सो क्या होगी इसकी वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, सो some higher velocity will be at this point, ठीक है। So that is what work done is equal to change in kinetic energy. And work done by a force, here we are considering one force, but I'm saying if there are many forces on that, we can apply the same principle. We can say work done by sum of work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. So इस particle के ऊपर अगर multiple forces लग रही हैं, so इस particle के ऊपर multiple forces लग रही हैं, so we can say work done by all the forces, ठीक है, इन सारी forces का work done is equal to change in kinetic energy, equal to change in kinetic energy. और you can visualize it in a manner कि इसके ऊपर अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है एंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस से इसकी काइनेटिक एनर्जी गॉट चेंज टू KEF, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, नाउ काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सो दैट वे ऑल्सो यू कैन विजुअलाइज, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. सो इट कैन बी अप्लाई सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारा वर्क डन बाय सारी फोर्सेस के ऑन ईच पार्टिकल के और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल. सो सेम ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब हो गया अगर मेरे एक से ज़्यादा पार्टिकल है, सपोज दिस इज़ देयर, ठीक है, अगर मेरा ये सिस्टम है, इफ़ आई अप्लाई फोर्स हेयर, ठीक है, so because of this force work done will be done. Initial velocity if both of them are rest, so final after applying this force और इधर कुछ friction भी है, so we can say work done by all the forces on all the particle is going to give me the change in kinetic energy of each and every particle. So work done क्या होगा यहाँ पे, इस force का work done होगा, फिर माइनस मेरा friction का work done होगा, work done by this force माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ईच एंड एवरी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी 1/2 m1. अगर ये m1 है और ये m2 है तो m1 इसकी कितनी बड़ी है काइनेटिक एनर्जी प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है. दोनों का इंडिविजुअल देखेंगे फॉर ईच एंड एवरी. अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में और भी पार्टिकल है, सो ईच एंड एवरी हैज़ गॉट सम इंक्रीज इन वेलोसिटी बाय ऑल द फोर्सेस विच इज़ बीन अप्लाइड ऑन देम, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, सो वी कैन से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन इज गोइंग टू in this direction and the movement is in this direction, so minus work done by friction is equal to kinetic energy final. Kinetic energy final will be दोनों पार्टिकल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी mv1 mv2. okay, so that is what it's been written here. Sum of all the forces on each particle or a system of particle is equal to sum of the change in kinetic energy of each particle in a system, ठीक है. जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी if we do the work done by all the forces, sum of work done by all the forces, right? So we are just seeing the analytical concept. इसकी जब हम एप्लीकेशन देखेंगे with some questions तो और थोड़ा क्लैरिटी आएगी इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में. we'll see some questions after this slide, so to get a better understanding, ठीक है. सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मीन्स के विल स्टडी इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो हम सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ेंगे. सो देयर राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग पूरा बॉडी जो है और द रिजिड बॉडी है एज अ सिंगल पार्टिकल ओनली कंसिडर करके चल रहे हैं. बट इन द कमिंग चैप्टर्स सेंटर ऑफ मास वगैरह में या रोटेशन में विल हैव मल्टीपल रिजिड बॉडीज, सो विल कंसिडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. सो वहाँ पे भी वी कैन अप्लाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं ये, और रिजिड बॉडीज़ के ऊपर. मैंने बताया ना काफ़ी फ्लेक्सिबल थ्योरम है ये, एंड इट हैज़ बिन वाइडली यूज्ड. सो रिजिड बॉडी पे भी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी यू कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसका जो फाइनल वर्क एनर्जी थ्योरम निकल के आती है मेरी, दैट इज़ वर्क डन सम एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस. एंड अगर ये मेरा ब्लॉक है, सो इसके अंदर हमने स्प्रिंग फोर्स नहीं कंसिडर करी थी. अभी हमने पिछला वाला जो एग्जांपल देखा था ना, आई फॉरगेट टू मेंशन द स्प्रिंग फोर्स. यहाँ पे अगर मेरी फ्रिक्शन है, इफ़ आई एम मूविंग हेयर विद दिस फोर्स एंड देयर इज अ स्प्रिंग फोर्स ऑल्सो हेयर, स्प्रिंग फोर्स की वजह से भी वर्क डन आएगा m1 m2, ठीक है. सो इफ वी कंसिडर स्प्रिंग फोर्स एज एन इंटरनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन, और ये पूरा सिस्टम अगर मैं मूव करा रहा हूँ किसी बॉडी पे, ठीक है, विच इज़ मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है, सम एक्सेलरेशन a, तो इसके ऊपर अब क्या कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी मेरी, एक्सटर्नल फोर्स हो गई ये वाली, ठीक है, एंड दिस वन, दिस फ्रिक्शन, ये दो मेरी एक्सटर्नल फोर्स हो गई. इंटरनल फोर्स मेरी क्या हो गई बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स, ठीक है.
then मेरी pseudo force आ गई because it is moving here with some acceleration. We'll apply the pseudo force in both the particle in this direction m into a. ठीक है, pseudo force लगा दी. और any other force if it's present, like इस पे normal लग रही होगी, इस पे weight लग रहा होगा, any other force present, we can say इन सारी फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन होगा दैट इज़ गोइंग टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस. ठीक है, सारी फोर्सेस की वजह से अगर इनिशियली इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी एंड सो फाइनल वेलोसिटी विल बी बाय ऑल दिस फोर्सेस. इन सारी फोर्सेस की वजह से जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट वी कैन राइट इट डाउन इन दिस वे. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय इंटरनल, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय और एनी अदर फोर्स, जितनी भी फोर्सेस होंगी that is going to change the kinetic energy of the particle. ठीक है, so that is what my final theorem for it ना. So we'll see some questions and we'll apply some questions का questions के through इसका application देखते हैं तो और better understanding होगी. ठीक है, so this is my example number 1. यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सरफेस दे रखा आपको इस तरीके का. ठीक है, और ये वाला सरफेस मेरा रफ है. दिस सरफेस इज माई रफ सरफेस, ये स्मूथ है. दिस वन इज स्मूथ एंड दिस वन इज स्मूथ. ठीक है, बस ये वाला पोर्शन मेरा रफ है और इसका मेरे को रफ पोजीशन का मेरा म्यू दे रखा है. ठीक है, सो म्यू इज़ गिवन टू मी, म्यू के इज़ गिवन टू मी 0.2. ये लेंथ दे रखी है मेरे को 3 मीटर. नाउ आई हैव बीन दिस हाइट दे रखी है मेरे को 1.5 मीटर. इनिशियली इट इज़ बिन ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट and it start from here and it end somewhere on this path, and we have to find out के what is its distance, के कहाँ पे आके ये रुकेगा. बिकॉज ये रुकेगा क्यों, पहले तो इसके पास यहाँ पे कुछ एनर्जी है बिकॉज इट एट सम सर्टेन हाइट. ठीक है, बिकॉज ऑफ वी विल सी इट इन पोटेंशियल एनर्जी वाले, जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हाउ इट इज़ गॉट द एनर्जी. सो यहाँ पे जब हमने इस पर वर्क डन किया होगा, यहाँ से इसको लिफ्ट कराया होगा यहाँ तक लाने में. ठीक है, सो नाउ एनर्जी गॉट स्टोर्ड इन टू इट. सो वो एनर्जी स्टोरेज जो होती है दैट इज़ नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी. विल सी दैट इन द कमिंग लेक्चर, बट राइट नाउ यू जस्ट कंसिडर द एनर्जी इज बिन स्टोर्ड हेयर. ठीक है, वो एनर्जी लूज करके यहाँ पे आएगा, दैट इज़ एनर्जी विल बी लॉस्ट हेयर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मोशन. ठीक है, एनर्जी ऑफ मोशन आ जाएगी. फिर यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, जब सपोज यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 रहेगी, कोई लूज नहीं होगा. यहाँ पे जो 100 है, नाउ द फ्रिक्शन विल बी देयर, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस इट्स एनर्जी. फ्रिक्शन इज लाइक एन एनर्जी लीकेज. 100% ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग फ्रिक्शन. सो नाउ देयर विल बी एन एनर्जी लीकेज. सो यहाँ से एनर्जी हो जाएगी सपोज 80. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक में कोई एनर्जी लूज नहीं होगा. जितनी यहाँ पे एनर्जी ऑफ मोशन है वही यहाँ पे इसकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी 80 हाइट पे जाके. ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे इसको फ्रिक्शन मिलेगा, फिर ये सपोज 60 हो गई यहाँ पे, फिर यहाँ तक ये 60 तक जाएगा, फिर ये आएगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे 40, फिर ये यहाँ पे 20 लूज कर देगा, फिर ये ऊपर. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये फाइनली कितना ये ट्रैवल करके ऐसे जाके कितना ट्रैवल करके ये रुकेगा. ठीक है, या तो ये पहली बार में जाके सारी एनर्जी इसकी लूज़ हो जाएगी, या ये यहाँ से जाएगा यहाँ पे पहुँचेगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा यहाँ पे. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि ये टोटल कितना यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकेगा. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन माई एनर्जी गॉट लीक्ड आउट ऑफ द सिस्टम. अगर ये सारा स्मूथ होता तो जितनी ये सिंपल ऑसिलेशन कर रहा होता. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर थी दैट गॉट ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी ऑफ मोशन. फिर ये एनर्जी ऑफ मोशन से सेम मूव कर रहा होता, कोई चेंज इन, बिकॉज यहाँ पे अपोजिट वर्क डन लग रहा है ना मेरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता सो इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम एनर्जी एंड हेयर द एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड इनटू get stored here. So same way it's going to happen. So we have seen the analysis of the question. Now we will have to find out this distance x find out करते हैं. ठीक है, so we'll apply the work energy theorem from here to के फाइनल ये जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम निकालते हैं. सो वर्क एनर्जी थ्योरम में इनिशियल क्या है मेरा, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगाएंगे के इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल. दैट इज हाउ वी विल डू. के इनिशियल लेवल पे क्या है उसका स्टेट, एनी काइनेटिक एनर्जी देयर, और सारी फोर्सेस देखेंगे और उन सब सारी फोर्सेस का क्या वर्क डन है उस पार्टिकल के ऊपर और उसकी वजह से क्या फाइनल मेरी काइनेटिक एनर्जी है. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई. सो यहाँ पे क्या है मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज द पार्टिकल इज एट रेस्ट. ठीक है, बट यहाँ से जब पार्टिकल मूव, यहाँ पे इस पर फोर्सेस कौन सी होंगी, एक mg लग रही होगी इस पर फोर्सेस से. सो ओनली 1 mg इज देयर. नॉर्मल जो होगी दैट इज़ यहाँ पे जो नॉर्मल होगी दिस नॉर्मल दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द मोशन. ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मोशन दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क. जो वर्क करेगी दैट इज माई mg इज गोइंग टू डू द वर्क ऑन दिस. ठीक है, सो वर्क डन बाय mg. और हम देखते हैं कि जब mg का वर्क इस डायरेक्शन में होगा सो दैट इज मेक इट्स वेलोसिटी इंक्रीज. यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वर्क डन करेगा ये बिकॉज mg इज इन दिस डायरेक्शन एंड द मोशन इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. सो वर्क डन बाय mg विल बी पॉजिटिव. सो यहाँ से यहाँ तक आएगा, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड. अब यहाँ से इस पोर्शन में क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन इज देयर. फ्रिक्शन इज लाइक
it is going to oppose the motion. That means friction force will be in this direction because the motion is in there in this direction. Friction force oppose करेगा, so that means it is negative. Why? Because 180 डिग्री का एंगल है between friction force and my displacement. Displacement इस डायरेक्शन में हो रहा है और friction force इस डायरेक्शन में लग रहा है, this one. ठीक है, so my फ्रिक्शन फोर्स विल बी नेगेटिव. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू कि इस पर दो फोर्सेस लगेंगी. इस यहाँ से यहाँ तक इस पर पहले ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, यहाँ से यहाँ तक इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक इस पर फिर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी. बट ये वाली जो ग्रेविटी होगी दैट विल बी नेगेटिव. बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस वन, वी आर ओनली सीइंग कि इनिशियल यहाँ पे था और फाइनल पोजीशन के बीच में वी आर फाइंडिंग आउट कि इनिशियल और फाइनल के बीच में सारी फोर्सेस की वजह से क्या क्या वर्क डन रहा. ठीक है, सो इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे ड्रॉप हुआ. सो इनिशियल पे से फाइनल में कौन कौन सी फोर्सेस से पे क्या क्या वर्क डन हुआ. सो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ मेरा, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया, दैट इज़ पॉजिटिव, आई कैन राइट इट डाउन. द वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mgh और माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, म्यू mg इंटू एक्स. ठीक है, सपोज ये एक्स पे आके रुक गया ना, सो म्यू mg बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन है, वी आर टेकिंग द लिमिटिंग म्यू के जी होगा, म्यू के mg इंटू एक्स पे आके रुक गया और फाइनल क्या है, रुका ही हुआ है. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो प्लस ऑल जो वर्क डन किया इन दोनों फोर्सेस ने इज इक्वल टू माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ से इफ़ यू सी कि यू पुट द वैल्यू ऑफ mg, h की वैल्यू आपको 1.5 दी हुई है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एस 1.5. दैट मीन्स ये यहाँ पे जैसे ये 3 है ना, सो 3 का मतलब है ये यहाँ से यहाँ पे गया होगा, पहले 3 कवर करके फिर यहाँ पे गया होगा, फिर 3 और कवर किया होगा, फिर यहाँ पे आके इसके हाफ में आके रुक गया. ठीक है, पहले 3 इधर, फिर 3 वापसी में और फिर 3 आके यहाँ पे रुक गया होगा. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ कवर्ड 7.5 मीटर. ओके, सो इफ़ यू सी हेयर, इफ़ यू सी कि दिस इज़ माई पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. आपने इन एलिमेंट्री क्लासेस में आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ दिस हाइट ओनली. सो यहाँ पे इस के पास पोटेंशियल एनर्जी है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ मोशन. यहाँ से यहाँ तक में इसमें एनर्जी ऑफ मोशन रहेगा, बट दैट एनर्जी विल बी कीप ऑन रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी. फिर यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन रिटन हियर. ए से बी में पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. बी से सी में हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट्स गोइंग टू इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूसिंग. सी से डी में potential energy increases, kinetic energy reduces. D से C में potential energy reduces, kinetic energy increases. C, B and A में C, B and A B and finally B. ठीक है, सेम ऐसे चल रहा होगा, राइट. सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, एक प्लैंक है ऑफ मास m एंड द लेंथ ऑफ लेंथ l. ठीक है, ये प्लैंक है, मास m लेंथ l is placed on a smooth horizontal, this is smooth surface. A small block of mass m is projected with velocity v0 from the left end as shown in the figure. यहाँ से इसको v0 को फेंका, v0 पे फेंका. The coefficient of friction between the block and the mass, यहाँ पे it is my rough surface. ठीक है, there is a coefficient of friction and its value is such that the blocks become stationary with respect to the plank before it reaches the other end. Okay, so ये जो block है it will get stopped after moving some time. So that is what's been given. We have to find out that time कि जब ये stop हो जाएगा, that time when they both will be moving with common velocity. पहले तो वो निकालनी है. सेकेंड क्या निकालना है हमने, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इट्स लाइक. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी फ्रिक्शन ने वर्क डन किया जब ये रुक गया यहाँ पे आके, वी हैव टू फाइंड आउट दैट वर्क डन. विल यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम इन दैट. विल सी हाउ. यू हैव टू सी वेदर दिस वर्क इज पॉजिटिव और नेगेटिव. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन ऑन द प्लैंक ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड. इस प्लैंक पे निकालना है. देन वर्क डन ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड बाय द फ्रिक्शन. ठीक है, देन वी हैव टू डिटरमाइन द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन. ठीक है, इस पे कितना वर्क डन किया फ्रिक्शन ने, देन इस पे कितना वर्क डन किया फ्रिक्शन ने. वी हैव टू फाइंड आउट दैट नेट वर्क डन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन इस पे होगा दैट इज ऑन ए हायर और ज़्यादा वैल्यू का होगा नेगेटिव में, और इसके ऊपर जो होगा दैट इज विल बी पॉजिटिव, वो कम वैल्यू का. सपोज इस पे वर्क डन जो होगा -100 होगा, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ज़्यादा होगा. इस पे जो होगा इस पे +50 होगा. सो ऑलवेज नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है, ऑलवेज इट विल बी नेगेटिव. दैट वी हैव सीन इन आवर लास्ट लेक्चर. यू कैन गो एंड रेफर दैट. ओके, सो नाउ विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है. जब ये इधर v1 वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा, सो ये सरफेस रफ है, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा नीचे ऊपर वाले ब्लॉक पे, जिसकी वजह से इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा. इस पे ऊपर वाले ब्लॉक पे जब फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग ए ट्रैक, इसकी वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग. और नीचे वाले पे बिकॉज इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन फ्रॉम द बॉटम सरफेस, इट इज स्मूथ, सो इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है, सो ऊपर वाला क्या होगा,
सपोज 10 इनिशियल वेलोसिटी है, वो 10 से 8 जाएगा, 8 से 6 आएगा, 6 से 5 आएगा, और नीचे वाला क्या होगा, वो 0 आएगा, 0 से 3 आएगा, 3 से 4 आएगा, और 4 से 5 आएगा। जब ये दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, एट दैट पॉइंट माई फ्रिक्शन विल गेट 0, फ्रिक्शन 0 हो गया, दैट मीन्स माई नो पुश इज कमिंग ऑन दिस बॉटम ब्लॉक, सो इसकी एक्सीलेशन 0, और ऊपर वाले की भी देर इज़ नो रिलेटिव मोशन, दोनों पे फ्रिक्शन 0, और दोनों पे देर इज़ नो अपोजिट ड्रैग इन दिस डायरेक्शन एंड देर इज़ नो फॉरवर्ड ड्रैग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दोनों सेम वेलोसिटी से देन स्टार्ट मूविंग स्टार्ट कर देंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से, ठीक है। दैट इज़ हमें निकालना है टाइम और कॉमन वेलोसिटी कितनी है। उसके बाद हम फ्रिक्शन निकालेंगे, ठीक है, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द फ्रिक्शन फ्रॉम दैट। ओके, सो फर्स्ट विल सी द एफईडी बनाते हैं। ऊपर वाले का बनाया हमने, ऊपर वाले के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रही है, mg नॉर्मल, ठीक है, और एक इस पे फ्रिक्शन पीछे, बिकॉज द मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, सेम फ्रिक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट, इसके ऊपर आगे आ जाएगा। अब इसके ऊपर जो मोशन हो रहा है a1 इन दिस डायरेक्शन, सो विल राइट इट डाउन। इसका एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन इज माई दिस वन, इससे निकालते हैं पहले, दिस स्मॉल ब्लॉक is moving with initial friction, because of this friction only it is getting the acceleration, because there is no other force in this direction. So Newton's second law, F is equal to m a1, यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने डाल दी म्यू इंटू m इंटू जी, बिकॉज द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, सो वी कैन राइट डाउन द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू a1। सो यहाँ से मेरा एक्सीलरेशन आ गया म्यू इंटू जी, ठीक है, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। इससे रिटार्ड कर रहा है बेसिकली, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में भी नॉट से है, सो इससे रिटार्ड कर रहा है। सो नाउ आई विल हैव टू फाइंड आउट कि ये फाइनली कब जाके वील हैव टू फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी निकालते हैं। सेम वे नीचे वाले के ऊपर देखते हैं, सेम नीचे वाले के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो सपोज इट स्टार्टेड मूविंग विद एक्सीलरेशन a2, बिकॉज ओनली दिस फ्रिक्शन फोर्स इज देयर, नो अदर फोर्सेस आर देयर, सो वी कैन से F इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a2। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मेरी कितनी है, वी जस्ट पुट द फ्रिक्शन फोर्स हेयर, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मेरी कितनी थी यहाँ पे, म्यू mg, सो म्यू m इंटू जी इज इक्वल टू माई m इंटू a2। सो यहाँ से मेरा a2 आ जाएगा, a2 इज माई म्यू mg बाई m, ठीक है। सो मेरा a1 a2 आ गए मेरे, दिस इज माई a1 म्यू जी, a2 आ गया मेरा म्यू mg बाई m। नाउ बिकॉज ऑफ दिस a1 ये रिटार्ड करेगा और ये एक्सेलरेट करेगा, और एक लेवल पे जाके दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, वी हैव टू इक्वेट दैट वेलोसिटी। सो विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक एट टाइम t निकालते हैं। सो टाइम t पे निकालने के लिए क्या होता है मेरा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी मैंने डाल दी v1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, रिटार्डेशन कर रहा है म्यू जी से, ठीक है, म्यू जी इंटू टी। अब ये वेलोसिटी को मैं इक्वेट कर दूंगा इसकी वेलोसिटी पे आफ्टर टाइम t, एंड वी कैन गेट द t फ्रॉम देयर, ओके, and we can get the t from there, and we can get the velocity from there, कि वो common velocity कितनी होगी। so let's see इसकी कितनी होगी आफ्टर टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 है, सो यहाँ पे का सिंपल आ जाएगा a टू t। अब इन दोनों वेलोसिटी को मैं इक्वेट कर दूंगा, दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी, वी हैव इक्वेटेड इट, v नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू दिस। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t हेयर, t से यहाँ पे आई जस्ट ब्रिंग इट हेयर, कॉमन t लेके, एंड आई जस्ट कर द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हेयर, और t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और t की वैल्यू इफ आई पुट इट हेयर एंड हेयर, इफ आई पुट द t वैल्यू हेयर, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ सिंपल कि वो कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी दोनों की, ठीक है। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ t एंड v, सो कॉमन वेलोसिटी कम्स आउट टू बी mv नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस m नॉट, दिस इज माई कॉमन वेलोसिटी कम्स आउट, राइट। टाइम आ गया, कॉमन वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव साइडिंग है। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन क्या होगा मेरा, वर्क डन दिस फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू इंटू एम इंटू जी, ठीक है, इंटू एक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इसने, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट नाउ दैट द डिस्टेंस ट्रैवल, और अनदर वे इज टू फाइंड आउट रादर देन गोइंग थ्रू दिस वे, वी कैन फाइंड आउट विद द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करेंगे हम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में मीन्स इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, इसके वी हैव टू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस, ठीक है। इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं ऊपर वाले के ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स mg, ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे इसके मोशन से, बिकॉज एस इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज परपेंडिकुलर, सो दे बोथ विल बी 0। सो बिकॉज ऑफ n mg वर्क डन विल बी 0, ओनली वर्क डन विल कम बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो इनिशियल वेलोसिटी इज माई हाफ m v नॉट स्क्वायर माइनस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज हैविंग द नेगेटिव वर्क डन, सो व्हाट इज दैट, म्यू mg इंटू we'll say mu mg into distance travel x
इज इक्वल टू, so we don't have to find out this separately, so we can simple way ऐसे कर सकते हैं, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता है m इंटू वी स्क्वायर जो मैंने यहाँ से निकाली है दिस वेलोसिटी, ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे. सो यहाँ से मेरा आ जाएगा माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन दिस स्मॉल ब्लॉक विल बी 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m वी नॉट स्क्वायर, ठीक है. इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरी फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी ऑन वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. अब बड़े वाले के ऊपर निकालनी है मेरे को फ्रिक्शन फोर्स. इसके ऊपर क्या होगी, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन एंड द मोशन इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है. ये 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी हाफ m, कैपिटल M होगा यहाँ पे, और v ये वाली सेम वैल्यू होगी हाफ m वी स्क्वायर. तो यहाँ से मेरी ये आ गई वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस बिगर प्लैंक. अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, दैट विल गिव मी माय नेट वर्क डन, ठीक है. और वो जो वर्क डन आता है दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. सो यहाँ पे वर्क डन आएगा मेरा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दैट वी हैव सीन हियर नेगेटिव वर्क डन होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और जो नेट होगा दैट विल बी नेगेटिव, बिकॉज ये वैल्यू जो इस पर होगी दैट इज़ मोर नेगेटिव. इस पर जो वैल्यू होगी दैट इज़ मोर नेगेटिव, इस पर लेस पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है. सपोज इस पर -100 होगी, इस पर +50 होगी, सो वी कैन से ओवरऑल इट कम्स आउट टू बी -50, ठीक है. ओवरऑल वी कैन से द नेट वर्क डन बी नेगेटिव. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर. वर्क डन ऑन द ब्लॉक निकाला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन. सेम वे वी हैव डन इट ऑन द प्लैंक, हाफ m वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ m स्मॉल m वी स्क्वायर माइनस m वी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर नेट फ्रिक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ब्लॉक ऑफ मास एम वेल्डेड विद अ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, ठीक है. ये यहाँ से स्टिफनेस के से इट इज़ हियर इट इज़ वेल्डेड, द स्प्रिंग इज इनिशियली रिलैक्स्ड, ओके. द वेज इज फिटेड, द वेज फिटेड मूव्स विद एन एक्सेलेरेशन ए, ओके, इट इज़ मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन ए. इसके ऊपर विल ऑब्जर्व इट फ्रॉम द वेज, सो इस पर एक स्यूडो फोर्स आएगा, विल सी दैट. फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस, maximum distance L relative to the wedge if the coefficient of kinetic friction between the block and the wedge के बीच में friction is also there. We have to find the maximum deformation of the spring by the work energy. Okay, so क्या हो रहा होगा ना इस केस में, we'll analyze the case first, ठीक है. सिंपल हमारे को we have been given this system और ये एक्सीलेट कर रहा है इधर, ठीक है. अब ये रिलैक्स पोजिशन में जब ये एक्सीलेट करेगा विल ऑब्जर्व इट फ्रॉम हेयर. सो इस पर आप सीडो फोर्स लगाएंगे इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ सीडो फोर्स एक इधर की साइड में एक इस पे कंपोनेंट आएगा, एक इधर की साइड में कंपोनेंट आएगा. सो जो इधर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू मेक इट स्ट्रेच, ठीक है. इसको स्ट्रेच करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा ये वाला कंपोनेंट, ठीक है. जब जो ये वाला कंपोनेंट आएगा एम ए, सपोज दिस इज माई एम ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है. और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे लग रहा होगा, दिस माई फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस, और एक इसमें विल बी हैविंग द 3 फोर्सेस होंगे इसके ऊपर. एक तो ये स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और ये एम ए कॉस थीटा वाली फोर्स, ठीक है. ऑल दिस फोर्सेस विल फाइंड आउट द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एंड देन विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस. वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का मतलब होगा जब ये यहाँ पे भी इसकी रेस्ट पे है, और जब ये पूरा का पूरा डिफॉर्म हो गया होगा तो इस पोजीशन पे भी जाके इट विल गेट एट अ रेस्ट ओनली, ठीक है. बीच में ये मोशन कर रहा होगा, बट एट द लास्ट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब होगा एट दैट पॉइंट इट विल बी एट रेस्ट. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कि इट डिस्प्लेस फ्रॉम हेयर टू हेयर, मैक्सिमम एल तक डिस्प्लेस कर गया, ठीक है. एंड इट इज़ मूविंग हेयर विद एक्सेलरेशन ए, ब्लॉक डिस्प्लेस फ्रॉम 1 to B. So we are observing it from non-inertial frame of reference wedge के. So we have seen कि maximum elongation पे भी इसकी kinetic energy 0 होगी, initial भी 0 है with respect to wedge. Okay, with respect to wedge we are only observing. Now we'll apply the forces and we'll take the component of forces. सबसे पहले ये ब्लॉक है, इसके ऊपर सीडो फोर्स लगाते हैं. एक कंपोनेंट इधर आएगा एम ए कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर आ गया एम ए साइन थीटा. ये वाला कंपोनेंट इज गोइंग टू बी देयर इन नॉर्मल, और जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स पे इम्पैक्ट आएगा. सो विल हैव टू टेक दिस कंपोनेंट ऑल्सो. सेम वे एम जी के 2 कंपोनेंट कर दिए, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, ठीक है. नाउ जो एन की वैल्यू आ गई मेरी, दैट इज़ नथिंग बट एम ए साइन थीटा प्लस म्यू एम बी कॉस थीटा, और जो मेरा बिकॉज इट इज़ स्लाइडिंग सो माई मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी म्यू इंटू एन. जो मेरी एन की वैल्यू आएगी, जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एन हियर. सो मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी एम ए साइन थीटा
plus mg cos theta. So that will be my frictional force. Pseudo force नॉर्मल और ये नॉर्मल फोर्स के की वजह से जो मेरा मोशन होगा, मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर, आई कैन से जीरो वर्क डन बाय द नॉर्मल. ओके, सो आई जस्ट हैव टू पुट कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ये जीरो है, ये जीरो है. अब मेरे को बस वर्क डन निकालना है काइनेटिक बाय ऑल फोर्सेस एंड हैव टू इक्वेट इट टू जीरो. अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकालेंगे. एक तो फोर्सेस पे ये लग रही है, एक फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रही होगी, और एक ये mg आ गया इस बिकॉज द मोशन इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, सो विल कंसिडर ऑल द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन ओनली. ठीक है, मतलब इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली में ये वाली डायरेक्शन की फोर्सेस सारी हमेशा जीरो होंगी. ठीक है, बस ये वाली फोर्सेस लेनी है हमने. तो यहाँ पे फोर्सेस कौन सी है, एम ए कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और एक ये म्यू इंटू एन. ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं करी, ये म्यू इंटू एन होगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज़ बिन गिवन फ्रिक्शन ऑल्सो. ठीक है, सो म्यू इंटू एन और आएगी, और जो एन होगा इज नथिंग बट बाय एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा. ठीक है, सो ये तीन फ्रिक्शन फोर्सेस होंगी एंड वन मोर फोर्स स्यूडो फोर्स की वजह से कंपोनेंट आ गया. राइट. ठीक है, अब ये अप्लाई करते हैं हम लोग. सो एक स्प्रिंग force will also be there. So spring force will also be there because it is stretched to its level. So spring force in this direction, x is in this direction, spring force will be minus 1/2 k और कितना इसका लेंथ स्क्वायर. ठीक है, सो चार फोर्सेस होंगे इस पर. वन इज बाई ग्रेविटी. ठीक है, जो कंपोनेंट नहीं देख रहे, अगर हम ओवरऑल देखें चार फोर्सेस होंगी. एक ग्रेविटी लग रही होगी इस पर, एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी, एक ग्रेविटी लग रही होगी, एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी, एक इस पर स्यूडो फोर्स लग रही होगी इन दिस डायरेक्शन, और एंड द फोर्थ वन विल बी फ्रिक्शन. ठीक है, सो इस पर एम जी हो गई इस डायरेक्शन, एफ एस हो गई इन दिस डायरेक्शन. सेम वे इसी डायरेक्शन में इस पर फ्रिक्शन लग रही होगी इन दिस डायरेक्शन, और एक इस पर स्यूडो फोर्स लग रही होगी इन दिस डायरेक्शन. तो ये चारों फोर्सेस की वजह से हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इन चारों फोर्सेस का, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, उनकी वजह से जीरो वर्क डन होगा. बट इन डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होगा इस वाली डायरेक्शन में, विल हैव टू टेक इट. सो इसका देखते हैं डब्ल्यू का, डब्ल्यू जी का. सो वर्क डन हेयर इज कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, मोशन इस डायरेक्शन में है, सो वी कैन टेक इट एम जी साइन थीटा का नेगेटिव माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल. फ्रिक्शन फोर्स दिस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर. ठीक है, दैट वी हैव सीन इट हेयर. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, वी हैव सीन दिस वैल्यू ना. So final position तक minus half k, we have seen it here. So we are having, so initially if it's at rest, final position is L, so we can say minus half KL square, because friction is in this spring force is in this direction, motion is in this direction, so it will be negative minus half KL square. Then friction की वजह से भी इसी डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, that is mu into n l to L. ठीक है, distance travel is L, so mu n into L. n की वैल्यू just bring it here and put it here. एंड फाइनल जो होगा दिस एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा पॉजिटिव है, एम ए कॉस थीटा इंटू एल. सो ये तीनों की वजह से नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा. बस ये चारों में ओनली अननोन इज एल. ठीक है, यहाँ से एल कैंसिल किया. ठीक है, यहाँ से मेरा एल की वैल्यू निकाल लेंगे, वी इक्वेटेड टू जीरो. एन की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी एंड वी इक्वेटेड टू जीरो. एल मेरा सिंपल आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल सिंपल, बिकॉज एल इज़ नॉट इन क्वाड्रेटिक, इट इज़ जस्ट ए लीनियर. ये एल की वैल्यू आ गई, इन सबको दूसरी सबको इधर ले जाएंगे एंड वी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय k एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ l. ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ दिस. राइट, नेक्स्ट विल मूव ऑन. ओके, तो काफ़ी पड़ा हुआ है, जस्ट 2 seconds, आई जस्ट हैव द वाटर एंड देन विल स्टार्ट. चलो, वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी फोर्स वाले चैप्टर में देखा था न्यूटन्स लॉज में. सो दैट वाज क्वाइट ट्रिकी इफ़ विल डू इट विद द फोर्स. अब हम देखते हैं सेम ही क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज में हमने लास्ट में देखा था व्हेन वी आर सीइंग द एडवांस लेवल क्वेश्चन. सो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इट विल बिकम अ सिंपल लेवल क्वेश्चन फ्रॉम द एडवांस व्हेन वी डू इट विद वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, इसमें हमें निकालनी है वेलोसिटी. पहले देखते हैं हेमिस्फेयर सरफेस पे ए बॉल इज रोलिंग डाउन, बॉल इज़ कमिंग डाउन. ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद द रोलिंग, बाद में देखेंगे हम. सो बॉल इज़ कमिंग डाउन एंड
it will do a make a circular motion, और एक point पे बाद जाके it will contact surface will get loose और ये बाहर आ जाएगी. तो हमें वो थीटा के साथ इसका velocity निकालनी है. You have to find out के with the theta how this theta this velocity is changing. We have to find out the velocity function of theta. That is what we have to find out. ठीक है. So let's start. So ये ball है and it is coming down like this. Okay, so we will apply the work energy theorem. Work energy theorem apply करते हैं इस पे. और this hemisphere ना, this is also moving with this acceleration. A acceleration से इधर move कर रहा है. ठीक है. So we'll analyze it with respect to hemisphere पे बैठ के analyze करेंगे. So इस पे जो ball पे at certain point हमें इसका velocity निकालनी है with a function of theta, how it is changing with as a function of theta निकालनी है. So we'll consider it at certain point when it is making an angle theta. ठीक है. इस पे क्या क्या forces लग रही हैं. We'll see initial kinetic energy is 0, क्या क्या forces लगी और जिसकी वजह से final kinetic energy आई. That is what we are going to find out. Initial kinetic energy 0. यहाँ पे अगर मेरा अगर ये बॉल पहुंची है इस पे velocity if I say the velocity is v. ठीक है. आप will find out the force work done by all the forces. Normal की वजह से work done will be 0 because it will always be perpendicular. ठीक. ma के कंपोनेंट निकालेंगे. ma कितना मूव किया, ये यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक देखते हैं. ma कितना है, ये ma इज़ इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में कितना मूव किया, ये दिस, यहाँ से यहाँ तक. दिस इज़ व्हाट इट इज़ मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ma. इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग इट टू ma इन दिस डायरेक्शन वी आर सीइंग कि ये जो है दिस मोशन कितना हुआ इस बॉल का, यहाँ से A से B पे पहुँची है. तो A से B में दिस इज़ इट हैज़ ट्रेवल्ड इन -y डायरेक्शन एंड दिस इज़ इट हैज़ ट्रेवल्ड इन प्लस x डायरेक्शन. ठीक है. सो ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला जो पोर्शन हुआ दैट इज़ बिकॉज वी कैन से इट इज़ बिकॉज ऑफ ma. ठीक है. इट इज़ बिकॉज ऑफ ma. वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बिकॉज ऑफ ma ऑन दिस बॉल विल बी ma इंटू दिस डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है. इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके. सो दिस डिस्टेंस हाउ विल फाइंड, ये मेरा r है. This is the angle it is taking, so this comes out to be r sin theta. Same way this comes out to be r cos theta. Okay, and this distance यहाँ से यहाँ तक का जो distance आएगा that will be this is my overall r और ये कितना आ गया r cos theta. So ये वाला जो portion आ जाएगा मेरा this will be my r into 1 minus cos theta और r minus r cos theta because this whole is r. This is my r cos theta, so this one will be r minus r cos theta. ठीक है. ये वाला r minus r cos theta आ जाएगा because we have to consider the mg. इस पे 3 forces लग रही है ना, normal, ma और mg की वजह से it is we say in the direction of mg how much it is travel this portion. So mg into r into r cos theta. ठीक है. mg की वजह से r minus r cos theta, ये वाला distance travel. pseudo force की वजह से कितना movement हुआ इसमें, this one. सो ma इंटू आर साइन थीटा, और जो नॉर्मल की वजह से नॉर्मल पे हमेशा इट विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, सो वी कैन से द वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी 0. इट इज़ इक्वल टू योर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सो जस्ट कैंसल इट. नाउ सी कैलकुलेट द v फ्रॉम हेयर बिकॉज theta you have to find out the v in terms of theta. ठीक है. So you have all the terms and you can find out in terms of theta. In terms of theta you can find out the value of v. Okay. So that's how you have to do. Okay. So everything is known to you. Cancel it. Take 2 from here. Rearrange the value of 1 minus cos theta को just change it to इसको just change it to half angle. इसको भी half angle में change करके you will get the value of v. ठीक है. यहाँ से you can calculate the value of v from here in terms of theta. Next देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, this trolley is moving with acceleration a and we have to find out this theta. What is the theta it is making? So we'll find out कि जब ये theta बनाएगा there also it will be at rest. ठीक है. मैक्सिमम एंगल पे, और here also it will be at rest and we'll apply the वर्क एनर्जी थ्योरम इनिशियल एंड फाइनल. ठीक है. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं. इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी मेरे को. फर्स्ट विल सी द फोर्सेस कौन सी लग रही हैं. एक तो इस पर सपोज वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस कार्ट. ठीक है. एक तो इस पर सूडो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, एक mg लग रहा होगा, एक टेंशन लग रहा होगा. 3 फोर्सेस लग रही हैं मेरे को. तीनों फोर्सेस का विल फाइंड आउट कि तीनों फोर्सेस की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ व्हेन इट कम्स डाउन टू दिस पोजीशन. ठीक है. सो विल टेक इनिशियल पोजीशन विद दिस, फाइनल इट इज दिस. तो इस पर फोर्सेस क्या है, mg, सूडो फोर्स और टेंशन. ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक आने में व्हाट इज ma की वजह से कितना मूव किया, दिस पोर्शन. ठीक है. और ये पोर्शन कितना है, l साइन थीटा. ठीक है. दिस इज माई l, दिस इज माई l.
So this is my nothing but L sin theta. So ma into L sin theta is the work done by pseudo force. टेंशन की वजह से क्या है, टेंशन की वजह से यहाँ से भी पहले भी मेरा L था और पहले भी मेरा ये L था ना, कोई चेंज नहीं हुआ, और बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल हियर ऑल्सो इट इज L. सो दिस वी हैव सीन बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट in the constraint motion our work done is zero. That is what we have seen in our spring pulley system. Virtual work method में work done by tension is always zero. So here also tension की वजह से जो work done will be comes out to be zero. ठीक है, टेंशन की वजह से work done zero हो जाएगा. mg की वजह से देखते हैं, mg की वजह से the motion will be in negative. mg नीचे लग रही है और ये move करके यहाँ से यहाँ जा रहा है. So this displacement will be in this direction and force is in this direction. So work done comes out to be negative minus mg into ये कितना move किया है. This overall is L, ये L है, एंड दिस पोर्शन विल बी दिस L cos थीटा हो जाएगा. सो L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, सो दिस विल बी mg L माइनस L cos थीटा. ठीक है, ये कंप्लीट L है और दिस इज माई L cos थीटा. सो L माइनस L cos थीटा. ठीक है, mg L माइनस L cos थीटा. एंड देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग t. इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है बिकॉज द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. दिस विल गेट जीरो. एंड फ्रॉम हियर यू हैव गॉट L इज नोन टू यू हैव ओनली अननोन इज थीटा. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर. ओके, you can easily calculate the value of theta from here. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो इसके अंदर क्या दे रहा है ना कि ये नीचे एक बड़ा प्लैंक है और उस प्लैंक और सरफेस के बीच में भी मेरी फ्रिक्शन है. फिर एक स्प्रिंग इज देयर विच इज़ कनेक्टेड विद दिस स्मॉल मास. ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी मेरा रफ सरफेस है. देयर इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1. मैं इसको इधर पुश कर रहा हूँ F से. ठीक है, आई एम पुशिंग इट विद सम फोर्स F. हमें निकालना है व्हाट इज दिस मिनिमम फोर्स F टिल दिस बिग ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग. ठीक है, ये बड़ा वाला ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग करने लगेगा. एंड वी आर हैविंग द फ्रिक्शन कंप्रेशन दे रखा है कि कंप्रेशन इज x नॉट, कि जब ये m स्टार्ट स्लाइडिंग x नॉट इज गिवन टू अस. ठीक है, x नॉट इज गिवन टू अस व्हेन इट स्टार्ट. no, x नॉट इज नॉट गिवन टू अस. x नॉट वी हैव टू फाइंड आउट x नॉट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f. ठीक है, सो इसके अंदर एनालाइज करते हैं सिचुएशन में हो क्या रहा होगा जब मैं इस पर F लगा रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस F मोशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा होगा जिसकी वजह से स्प्रिंग विल बी कंप्रेसिंग. स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे इस पर स्प्रिंग फोर्स इस पर इधर आ रहा होगा और नीचे वाले ब्लॉक पे इधर आ रहा होगा. ठीक है, सो अगेन वी आर गोइंग टू सी कि जब भी मेरी स्प्रिंग कंप्रेस हो गई. ठीक है, सो इस पर जो ऊपर वाले ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा होगा और ये वाला इधर से कनेक्टेड ये बड़े वाले ब्लॉक पे, तो बड़े वाले ब्लॉक पे इधर स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा. स्प्रिंग फोर्स विल बी हाउ मच x नॉट. अगर मैं x नॉट कहूँगा इस पर कंप्रेशन हो गया. ठीक है, इधर की डायरेक्शन में हमने देखा कंप्रेशन x नॉट हो गया. सो इस पे जो बड़े वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, छोटे वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा. वैल्यू विल बी k x नॉट. फोर्स इस पे इधर लग रहा है, बड़े वाले छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस μ1. सेम यही फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी ये बड़े वाले पे इधर बनेगी F. ठीक है, और नीचे वैसे इसको इधर फ्रिक्शन मिल रही होगी बड़े वाले को. सो बड़े वाले के ऊपर जो फोर्सेस, अब पहले बड़े वाले के ऊपर देखते हैं ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस हैं. सो बड़े वाले के ऊपर एक तो फोर्सेस इस डायरेक्शन में k x नॉट आ गई बिकॉज ऑफ कंप्रेशन. देन इसके ऊपर ये जो फ्रिक्शन ऊपर छोटे वाले के ऊपर इधर लग रही होगी, बड़े वाले के ऊपर इधर होगी, तो ये फ्रिक्शन आ गई μ1 mg बिकॉज ऑफ द रफनेस हेयर. और एक फ्रिक्शन इसको स्टॉप कर रही होगी इस डायरेक्शन में, दैट इज μ2 m प्लस mg. ठीक है, बिकॉज नॉर्मल विल बी इन दोनों की वजह से आ जाएगा. सो μ2 μmg. जब ये दोनों फोर्सेस मेरी ओवरकम इसको कर जाएगी देन इट विल स्टार्ट मूविंग. सो विल अप्लाई द विल सी दैट. छोटे वाले के ऊपर देखते हैं, छोटे वाले के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं. छोटे वाले के ऊपर एक तो kx इधर लग रहा होगा बिकॉज इट इज़ कंप्रेसिंग और एक फोर्स इधर है एंड माई फ्रिक्शन फोर्स विल बी हेयर. ठीक है, ये तीन फोर्सेस लग रही हैं इस पर छोटे वाले के ऊपर. नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू. पहले हम लोग इसके ऊपर विल फाइंड आउट, विल इक्वेट के हमारा ये वाली फोर्स प्लस ये वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स. एट दैट पॉइंट दिस m विल बी स्टार्ट मूविंग. सो kx नॉट प्लस μmg शुड बी जस्ट इक्वल टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, देन दे विल स्टार्ट मूविंग. सो यहाँ से मेरा k नॉट आ गया मेरा कि k नॉट किस कंप्रेशन पे दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग. x नॉट की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ से. नाउ आई अप्लाई माई वर्क एनर्जी थ्योरम on this small block. ठीक है, to find out the value of this force. ठीक है, because why? because मैं वर्क डन निकालूंगा इस तीनों फोर्सेस की वजह से. तीनों फोर्सेस की वजह से इसका इनिशियल क्या है 0, फाइनल क्या है काइनेटिक एनर्जी 0, एंड फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F. ठीक है, तो इसके ऊपर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकालते हैं. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है 0, वर्क डन बाय कितना है इसकी वजह से kx नॉट की वजह से वर्क डन कितना आएगा नेगेटिव बिकॉज इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और
स्प्रिंग फोर्स विल बी है, सो -1/2 k x नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई स्प्रिंग की वजह से। अब देखते हैं हम फ्रिक्शन की वजह से विल बी म्यू एम जी इज इन दिस सेक्शन, मोशन इज इन दिस सेक्शन, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, और कितना मूव करेगा ये एक्स नॉट के बराबर ही, ठीक है, सो म्यू एम जी टू एक्स नॉट। एफ की वजह से पॉजिटिव आएगा, दैट इज एफ इंटू एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ से एक्स नॉट इज नोन टू अस, फ्रॉम हेयर वी हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट हेयर एंड एफ वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम हेयर, ओनली एफ इज अननोन, okay, rest of the things are known to us, we can easily calculate, right? Okay, so we'll move on to our next question. Oh, it's already 1 hour, we have to cover up a lot of topics, conservative non-conservative forces hai hamara, then we have the potential energy. I think potential energy will cover tomorrow, we'll just see conservative and non-conservative forces aaj dekh lenge, potential energy we'll see tomorrow, ठीक है, otherwise the lecture will be almost 2 hours long. हम लोग कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आज देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल कवर इट टुमारो, राइट? सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ये ब्लॉक है, मैं एक हाइट से इसको ड्रॉप करता हूँ, क्या होगा ना, जब मैं ड्रॉप करूँगा ये स्प्रिंग विल स्टार्ट कंप्रेसिंग, स्प्रिंग कंप्रेस करेगा, फिर स्प्रिंग जब एक लेवल तक मैक्सिमम कंप्रेस कर जाएगा उसके बाद इस पर छोटे वाले ब्लॉक पे ऊपर फोर्स लगाएगा, जब ऊपर फोर्स इस पर लगाएगा सो ये अपनी रिलैक्स पोजिशन पे पहले आएगा ये ऑफ स्प्रिंग, और फिर उसके बाद इसको because at that time also it is having some spring some energy and it will keep on dragging, और ये पूरा elongate होता जाएगा, ऐसे होगा, पहले ये इस पे गिरा, कंप्रेस हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ पे गया, कंप्रेस हुआ, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आया, एंड देन इट विल द स्प्रिंग विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करेगा, एक लेवल पे जाएगा, उस लेवल तक स्ट्रिंग्स हमें निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम हाइट ऑफ एच, कि वो इतना स्ट्रेच कर जाए, ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक इतना स्ट्रेच कर जाए कि ये जस्ट नीचे वाले ब्लॉक को जस्ट लिफ्ट कर ले, ठीक है, सो ये कितना स्ट्रेच कर जाए, ये नीचे वाले ब्लॉक को जस्ट लिफ्ट कर जाए। तो ये समझ में आ गया ना इसमें क्या हो रहा है, पहले ये ब्लॉक जब यहाँ पे नीचे गिरेगा तो जिसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ठीक है, पहले ये ब्लॉक ऐसे नीचे जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, फिर ये ब्लॉक बिकॉज ऑफ कंप्रेशन जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद द कंप्रेस स्प्रिंग इज गोइंग टू वर्क, सो ऊपर डायरेक्शन में इस पर वर्क लगेगा, सो नाउ अपोजिट डायरेक्शन में द एम विल स्टार्ट मूविंग और ये स्प्रिंग विल स्टार्ट स्ट्रेचिंग, सो एक लेवल पे जाके स्ट्रेच हो जाएगी स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच अप टू दिस लेवल, सपोज ये स्ट्रेच अप टू एक्स लेवल, at that time this mass will be just lifted, ठीक है, that is what we have to find out कि ये h कितना मिनिमम होना चाहिए that it will just get lifted। सपोज ये m यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से फाइनल यहाँ पे आके पहुँच गया, and this is my value of x, ये जो एक्सटेंशन हुआ मेरा, this extension will be, जो इस वाले ब्लॉक पे क्या लग रही होगी, kx ऊपर लग रही होगी, जितना एक्सटेंशन होता रहेगा and that kx should get equal to mg, इसके मास के बराबर, at that point we have to find out। so suppose this block, ये स्मॉल ब्लॉक इस पोजीशन से आया, इस पोजीशन से नीचे तक गया, स्प्रिंग कंप्रेस करी, देन इट कम्स बैक अप टू दिस पॉइंट, सो 1 से 2 तक आने में ये जो यहाँ पे ये जो अपनी रिलैक्स पोजीशन से द स्प्रिंग स्ट्रेच अप टू एक्स, ठीक है, अपनी रिलैक्स पोजीशन से द स्प्रिंग स्ट्रेच अप टू एक्स, ठीक है, वो जो एक्स स्ट्रेच किया जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स आई के एक्स और उसको उसने एम जी से उठा लिया, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ एच निकालनी है अब हमने, ठीक है, सो दिस इज माई एक्स वी आर कंसिडरिंग, के एक्स इज माई एम जी, के इसको जस्ट लिफ्ट कर ले, सो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ गई दिस एम जी बाई, नाउ विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ दिस एम ब्लॉक एट पोजीशन 1 and 2, ठीक है, पोजीशन 1 पे क्या थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, पोजीशन 2 पे भी वेलोसिटी इसकी 0 होगी, ठीक है, विल फाइंड आउट द वैल्यू, सो ये 1 से 2 में मीन्स ये यहाँ से h से ड्रॉप हुआ था और ये x तक पहुँचा, तो कितना इसमें वर्टिकल कितना डिफरेंस आया इसमें, h माइनस एक्स, ठीक है, ये h है पूरा जो इसका रिलैक्स पोजीशन है, ठीक है, ये रिलैक्स पोजीशन है, थोड़ा यहाँ से ये x यहाँ से आएगा, ठीक है, ये x यहाँ से आएगा रादर देन यहाँ से, तो ये सपोज ये मेरा x है फ्रॉम द रिलैक्स पोजीशन, और ये रिलैक्स पोजीशन से मेरा x था, और ये फाइनल मेरा सेकंड पोजीशन यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे, सो फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप कितना आ गया, h माइनस एक्स, तो वर्टिकल फोर्सेस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी, mg लग रही होगी इस पे फोर्स, और एक बिकॉज जब ये एक्सिस पे स्ट्रेच हो रहा होगा ये वाले पे, देन देयर विल बी अ स्प्रिंग फोर्स ऑन दिस, ठीक है, 2 फोर्सेस होंगे इस पे, सो इस पे यहाँ से 1 और 2 में, सो विल सी 1 पे 1 और 2 के बीच में विल अप्लाई द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बिटवीन 1 and 2। 1 पे क्या है इसका, देयर इज नो वेलोसिटी, सो काइनेटिक एनर्जी 0, वर्क डन बाय यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन बाय, सो दिस वर्क डन विल बी mg इंटू एक्स, ठीक है,
जब ये ब्लॉक मेरा इस पोजीशन पे 2 पे पहुंच रहा होगा इस पे, देन इट मस्ट बी हैविंग ऐसे स्ट्रेच्ड अप होगी ना। सो इसके ऊपर नीचे वाले के ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रही होगी, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स kx ऐसे लग रही होगी, ठीक है। और इट इज स्ट्रेच टू अ डिस्टेंस अप टू x, ठीक है, ये x तक स्ट्रेच कर गया है। सो यहाँ पे जो इसका माई स्प्रिंग फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स the work done on this block will be minus k x square, ठीक है, minus k x square. So final value will be, यहाँ पे I just put the value of x from here and I can get the value of h. I can get the value of h after putting the value of x. Okay, so that is what there in this case. So we'll just explain it again. m इसके ऊपर यहाँ से गिरेगा, it will compress the spring. So after compressing it at level पे जाके it will get stopped and then compress spring will push back m, इसको push back करेगा m को, and the spring started stretching और वो up to level of x stretch करेगा और वो इतना स्ट्रेच कर जाए कि वो नीचे वाले ब्लॉक को उठा दे, ठीक है। सो वी कैन से कि वो इतना स्ट्रेच कर गया, यहाँ तक स्ट्रेच कर गया, सपोज इट स्ट्रेच अप टू दिस लेवल, कि यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स आ गई kx दैट इज जस्ट इक्वल टू माई mg, ठीक है। और यहाँ पे जो इस पर फोर्स लग रही होगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज kx, इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा ऑन दिस ब्लॉक विल बी -1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। सो विल फाइंड आउट, पहले हमने देखा विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x with this force equation. Second we have applied the work energy theorem at situation 1 and situation 2 पे work energy theorem लगाई. At 1 पे we have kinetic energy 0, at 2 पे भी kinetic energy 0 थी, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है मेरा, दिस इज़ माई टोटल h माइनस एक्स। सो यहाँ से जो ड्रॉप किया इसने mg की वजह से, दिस इज mg h माइनस एक्स, और kx कितना है, और मेरा this is my spring force is in this direction and k is in this direction, k is my elongation is in this direction, spring force is in this direction. So my because of this spring force my work done will be minus k x square. So final result is equal to 0 because my final kinetic energy is 0. यहाँ से मैं x की वैल्यू उठा के इसमें डाल दूंगा and I can easily get the value of k h from here. Okay, so that is what there in this question, right? So next we'll move on to the next topic is the conservative and non-conservative forces. Actually we were supposed to cover up to potential energy, but अभी हम conservative और non-conservative देखेंगे. Potential energy will cover up in the next lecture में देखते हैं, ठीक है। So conservative और non-conservative forces क्या होती हैं? Conservative forces are my energy savers and non-conservative forces are my energy spender. Energy saver का मतलब है कि if you do the force against the if the you do the force against the conservative force ना, तो उसके अंदर energy gets stored which you can utilize it in the later position. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये होती है, अगर आप कोई एक्सटर्नल वर्क करें, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं उसके अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो एनर्जी जो है इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट स्टोर्ड, इट विल गेट रिलीज्ड आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो दे आर एनर्जी स्पेंडर. सो विल सी इट विद दिस एग्जांपल. सपोज इस केस में दिस इज माई स्प्रिंग, ठीक है, एंड यू टेक इट फ्रॉम पोजिशन 1 से 2 तक ले गए, ठीक है। सेकेंड केस में सेम ब्लॉक को you just take it the same block यहाँ से यहाँ तक. पहले केस में it is my spring is there, you push it externally, F external लगाया आपने, सेम में you push it externally, F external लगाया यहाँ पे. So यहाँ पे क्या होगा, तो when you F external लगाया, जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, the spring get stretched, spring stretch होकर यहाँ पे आ गई. तो इन एंड सेकेंड केस में इस पर फ्रिक्शन है हमारी, we can say it's the non-conservative force and spring is my conservative force. तो यहाँ पे क्या है, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गया, spring get stretched, spring stretch हो गई and the potential energy and the energy got stored into it, ठीक है। energy stored का मतलब है अगर मैं यहाँ पे इस 2 पोजीशन पे जाके इसको external force हटा दूंगा, then this block will come back. This block has a tendency to come back here because my energy has got stored into this, ठीक है। My energy is not wasted, it got stored into it. अब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या है, जब मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये यहाँ पे जाके रुक गया पूरा, ठीक है। सेम वे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये पूरा जाके यहाँ पे रुक गया, तो मेरी सारी जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट गॉट स्टोर्ड इनटू दिस स्प्रिंग एनर्जी. और जैसे मैं यहाँ से 2 पे जाके अपना हाथ हटा लूँगा, एक्सटर्नल फोर्स मेरी 0 हो गई एंड इफ इट गेट रिमूव्ड एंड all of a sudden this block will move in this direction, ठीक है, because my energy got stored here, no energy losses here, ठीक है। अगर मेरी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, if we see there is a frictional force in this direction, सेकंड केस में हमने देखा, this is my second case, यहाँ पे मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। सेकंड केस में हमने देखा यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ठीक है। इस केस में इस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इस पर एफ इधर लग रहा है, और ये यहाँ से मूव करके
इट गॉट स्टॉप्ड हेयर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे अगर मेरी फ्रिक्शन अगर मेरी यहाँ पे जैसी एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है एक्सटर्नल, और आई रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स एट दिस पॉइंट, आई कैन से कि दिस ब्लॉक विल नॉट मूव हेयर। सो जितना भी मेरा फ्रिक्शन की वजह से जो होगा लॉस होगा एनर्जी का, दैट विल बी लॉस्ट इन टू द एनवायरमेंट, आई विल नॉट गेट दैट एनर्जी बैक, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट माई कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एनर्जी सेवर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एनर्जी स्पेंडर्स। सो वेन एवर यू स्ट्रेच समथिंग, सो अगर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, आपने जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, सो दैट कैन बी स्टोर्ड इनटू द स्प्रिंग। जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, द स्प्रिंग विल कम बैक, ठीक है। सो दैट मीन्स जो एनर्जी है दैट इज गेटिंग स्टोर्ड एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द एनर्जी बैक, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। बट यही चीज़ आपने सेम ब्लॉक को इफ़ यू मूव इट ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस, तो सेम ब्लॉक को अगर आपने यहाँ से यहाँ पे पुश किया और आपने एफ एक्सटर्नल हटा दिया, सो जो भी एनर्जी आपने लगाई है ना, दैट विल नॉट गोइंग टू गेट स्टोर्ड, दैट विल गेट लॉस्ट इन हीट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो दे आर स्पेंडिंग द एनर्जी, सो नो एनर्जी इज बीन स्टोर्ड। बट सेम केस में हमारा इस वाले केस में हमने देखा स्प्रिंग में द एनर्जी गेट स्टोर्ड इनटू द स्प्रिंग। जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, एनर्जी आपको सारी वापस मिल गई, जो भी आपने एनर्जी लगाई थी उसमें मूव कराने में, ठीक है, डिस्टेंस डी तक मूव कराने में जो भी एनर्जी लगाई थी वो सारी मिल गई। सो दैट इज़ व्हाट माई कंजर्वेटिव फोर्सेज आर माई एनर्जी सेवर्स एंड माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर माई एनर्जी स्पेंडर्स। दे डिसिपेट एनर्जी in terms of heat and sound, and unusable form में they spend the energy। और energy saver क्या होता है, they store the energy and give it back। so for example another देखते हैं कि if you take the block from here, if you apply an external force and you lift the block up to this point, ठीक है, up to this point आप लेके गए, so इसके अंदर क्या है now, and the energy is stored from A to B। so जब भी आप मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी देखें ना, सो समझो कि अर्थ और इसमें सम स्प्रिंग इज़ देयर, ठीक है। सो स्प्रिंग इज़ देयर, जब आप इसको हाइट पे लेके जा रहे हो, सो दैट मीन्स स्प्रिंग इज़ गेटिंग स्ट्रेच, सो दैट मीन्स सम एनर्जी इज़ बीन स्टोर्ड हेयर। जैसे आप जैसे आपने ये हटा दिया सरफेस, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। जस्ट कंसिडर इट इन द माइंड, विजुलाइज ऐसे करो कि जब भी पोटेंशियल जो ग्रेविटेशन फोर्स इज लाइक, इट इज़ लाइक स्प्रिंग इज कनेक्टेड है, ठीक है। सो जैसे आप ऊपर लेके गए, यहाँ पे इट्स गेट एनर्जी गॉट स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड हो गई, एंड वेन एवर यू रिमूव दिस सरफेस द ब्लॉक विल कम बैक, ठीक है। सो आप जैसे इससे दूर लेके गए, एनर्जी स्टोर हो रही है। अब इसमें क्या है मेरा कि इफ़ आई टेक द सिस्टम अगेंस्ट द ग्रेविटी, यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ, ये हमने पहले भी देखा था, या इस पाथ से लेके जाऊँ या इस पाथ से लेके जाऊँ, किसी भी पाथ से लेके जाऊँ, माई वर्क डन जो होगा मेरा, द वर्क डन विल बी सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है। वर्क डन विल बी सेम इन ऑल द केसेस इफ नो एयर ड्रैग इज देयर। सो तीनों केस में वर्क डन सेम होगा, तीनों केस में माई एनर्जी विल बी स्टोर्ड इक्वल टू mgh। देयर इज नो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ द पाथ, ठीक है। तीनों केसेस में माई एनर्जी स्टोर्ड विल बी सेम, ठीक है। एंड द एनर्जी स्टोर्ड विल बी नथिंग बट द वर्क डन क्या है मेरा, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये सपोज ऐसे कंसिडर करो, इट इज़ लाइक अ स्प्रिंग विद द अर्थ। ये ब्लॉक का अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया, यहाँ तक लेके गया, सो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। अब मैं किसी भी डायरेक्शन से लेके जाऊँगा, इसमें एनर्जी सब में सेम स्टोर होगी, दैट इज़ नथिंग बट mgh, ठीक है। तीनों में mgh सेम एनर्जी स्टोर हो गई। अगर एयर ड्रैग होगा, देन द पाथ मैटर्स। अगर एयर ड्रैग हुआ यहाँ पे, सो बिकॉज ऑफ द एयर ड्रैग माई एनर्जी विल गेट लॉस, एनर्जी लॉस हो जाएगा यहाँ पे। सो मे बी इसमें कम एयर ड्रैग लगेगा बिकॉज द पाथ इज स्मॉल, इसमें ज़्यादा एयर ड्रैग लगेगा, सो आई कुड नॉट एबल टू लिफ्ट इट अप टू दिस पॉइंट, आई कुड एबल टू लिफ्ट इट अप टू दिस पॉइंट। मेरा वर्क डन पूरा ओवर हो जाएगा बिकॉज माई एनर्जी विल गेटिंग लॉस्ट, एनर्जी का लीक होगा। और इस वाले केस में तो मेरा यहाँ तक पहुँच के यहाँ पे इसकी हाइट पहुँचेगी बस, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी एनर्जी सपोज अगर एयर ड्रैग है और एयर ड्रैग में अगर मैं ए से बी तक ले गया, सपोज इट रीचेज अप टू हाइट h, अगर मैं पाथ चेंज कर दिया ए से बी तक ले गया, तो इन दिस पाथ द माई वर्क जो मेरा जो एनर्जी होगा, इट इज़ गेटिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज विच इज़ डिपेंडिंग ऑन द पाथ दैट वी आर गोइंग टू सी, एनर्जी इज लीकिंग। सो अगर एयर ड्रैग है, इट इज़ नथिंग बट माई एनर्जी स्पेंडर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज़ माई एनर्जी स्पेंडर। सो अगर मैं इस वाले पाथ के थ्रू लेके जा रहा हूँ, माई एनर्जी विल गेट स्पेंड इन टू दिस पाथ, ठीक है। अगर वही चीज़ मेरी अगर स्प्रिंग होती तो एनर्जी विल गेट स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी इज़ गेटिंग स्पेंड इन दिस पाथ। सो आई कैन से कि यहाँ पे जो एनर्जी मेरी 100 है, तो पाथ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से एनर्जी लूज़ होकर सब मेरी एनर्जी यहाँ से 100 से 80 हो गई, तो यहाँ पे मेरा पाथ इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहीं पे आके मेरी ऑलरेडी
जो सेम मेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, 20 मेरी एनर्जी लॉस यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 20 लॉस एनर्जी से मैं हाइट एच पहुँचा, यहाँ पे 20 लॉस एनर्जी से यहाँ पे पहुँचा। अगर मैं पाथ और टेढ़ा मेढ़ा ले रहा हूँ, सो 20 लॉस एनर्जी से मैं हाइट H3 पहुँचा और छोटी हाइट तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है हर इफ़ यू टेक द पाथ, ठीक है। एनर्जी बिकॉज ऑफ एनर्जी ड्रैग द एनर्जी विल बी डिफरेंट, सो एनर्जी स्टोर्ड विल बी डिफरेंट का मतलब यहाँ पे है कि बिकॉज द हाइट विल बी डिफरेंट है, सो यहाँ पे जो हो जाएगी जो एनर्जी यहाँ पे mgh आ जाएगी, यहाँ पे इट विल रीच अप टू दिस लेवल, सो mgh1 आ जाएगी, और यहाँ पे दिस विल रीच, सो यहाँ पे mgh2 आ जाएगी इफ़ देयर विल बी एन एयर ड्रैग। तीनों केसेस में इफ़ माई एक्सटर्नल फोर्स इज सेम, तीनों केसेस में दिस विल बी माई path, बिकॉज ऑफ path and air drag my energy get lost, so because of that energy lost I've got different energy stored in different path, okay, different energy stored in different path, right? So this is what they are in conservative and non-conservative, energy saver and energy spenders, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं मेरी उसके अंदर there are three qualities of conservative force, and on that basis we have certain forces which we call a conservative forces। पहले qualities देखते हैं हम क्या qualities होती हैं जो conservative force को हम conservative force कब बोलेंगे, when the work done is a path independent। So हमने देखा कि अगर force मेरी conservative है, that means इसके ऊपर अगर मैं Fg ले लूँ, Fg is my conservative force। conservative force का मतलब होता है कि it is the path independent, कोई path पे depend नहीं करती। पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ तब भी एनर्जी स्टोर उतनी होगी, यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ तब भी एनर्जी स्टोर इतनी होगी। अगर किसी भी पाथ से लेके जाऊँ, ए से भी अगर मैं लेके जा रहा हूँ, सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड विल बी ऑल mgh। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, mgh एनर्जी स्टोर्ड। सेकेंड है क्लोज पाथ विल बी जीरो। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आया एंड आई ब्रिंग इट बैक टू दिस लेवल, ठीक है, किसी भी पाथ से लेके आया, सो माई नेट एनर्जी स्टोर्ड विल बी जीरो, बिकॉज नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, नेट वर्क डन जीरो, एनर्जी हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग बिकॉज एनर्जी गॉट स्टोर्ड हेयर, एनर्जी गॉट डिसिपेटेड हेयर। सो इट इज़ माई एनर्जी सेवर। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एनर्जी सेवर। जो मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया, एनर्जी स्टोर हो गई, पहले यहाँ से यहाँ तक एनर्जी स्टोर हो गई, और वही जो स्टोर्ड एनर्जी हो गई वो रिलीज हो गई यहाँ से यहाँ तक आने में। सो वी कैन से द नेट work done in the closed path is zero because no energy has been lost here। तीसरा है this is a path independent, it depends on initial and final position, so A और B it depends on initial and final position, it is not depending upon कि किस path के through लेके जा रहे हैं, ठीक है। so because energy loss नहीं हो रही ना, आप किसी भी path के through ले जाओ, because there is no energy loss। कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है ना, जैसे फ्रिक्शन हो गया, एयर ड्रैग हो गया, उसके अंदर एनर्जी लॉस होता है ईच एंड एवरी मोमेंट। तो जितना बड़ा पाथ होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ से यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे आपकी एनर्जी अगर 100 है एंड इफ़ यू आर टेकिंग इट अप टू दिस लेवल, सो यहाँ पे अगर आपकी एनर्जी 120 हो गई, ठीक है, इस पाथ के थ्रू लेके गए, सो एनर्जी विल बी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में और कम होगी। यहाँ से यहाँ तक अगर 100 है तो यहाँ तक 110 हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी विल बी, so यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड विल बी लेस बिकॉज एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग और बिकॉज ऑफ योर फ्रिक्शन, ठीक है। सो देर आर थ्री सेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज वी आर हैविंग, ग्रेविटी, स्प्रिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जब हम वी आर टेकिंग दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बट अभी हम दो मैकेनिकल, जो हमारा पोर्शन अभी मैकेनिक्स कर रहे हैं, उसमें दो सेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटी एंड स्प्रिंग फोर्स आर द एनर्जी सेवर्स। तो इसके अंदर अगर सेम वे हमने देखा ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको लिफ्ट कर रहा हूँ किसी भी को, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर मैं लेके जा रहा हूँ, सो एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड, और फिर वो बाद में अगर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग द सेम एनर्जी बैक इफ देयर इज़ नो एयर ड्रैग। सेम वे मैंने स्प्रिंग में देखा, इफ़ आई एम गोइंग टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, ठीक है, ये रिलैक्सड है, इफ़ आई एम गोइंग टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, अगर मैंने स्प्रिंग स्ट्रेच करी और मैंने यहाँ से अब इसको रिलीज़ कर दिया, तो इट विल कम बैक टू इट्स ओन पोजीशन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी कैन से कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे मैंने छोड़ा अब ये वापस आ गई। अगर यही सेम ब्लॉक को अगर फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर मैं लेके जाऊँ और यहाँ से यहाँ पे ले जाके छोड़ दूँ, तो द ब्लॉक विल नॉट कम बैक बिकॉज ऑल द एनर्जी इज़ बीन लॉस्ट हेयर, ठीक है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई है, एनर्जी हैज़ बीन लॉस्ट हेयर। सो फर्दर एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ आई टेक बॉल हेयर फ्रॉम P to Q through two paths P A Q, and I'll bring it back from this path. So energy gets stored from here to here because I'm doing the work against, energy gets stored from here to here because F G is in this direction,
gravity is in this direction and I'm moving in this direction, so work done will be negative. So whenever the work done is negative, that means the work is done onto it. So the work is done onto it means energy is being stored. So यहाँ से यहाँ तक मेरी energy store हो गई. Now यहाँ पे जो energy stored हो रही है, that is I'm doing now the work because Fg is this and my displacement is in this direction. So whatever the energy stored, it's been released here. So if we say okay, it will go up to this point and it will come up to this point, I can say the energy stored QVP energy is given back, and this is my यहाँ से यहाँ तक energy is negative, यहाँ से यहाँ तक energy is positive, and the net energy if I say it is same 0. So it will qualify all the three things. Path independent, किसी भी path से लेके जाओ, path independent and closed path में it will be 0. यहाँ से यहाँ तक गए और वापस आ गए, so closed path में my work done is 0. Third is my, it depends on initial and final position only work done. ठीक है, so work done comes out to 0 and depends on initial final. और तीन हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, ग्रेविटी, स्प्रिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, these three are the conservative forces that we are going to study. ग्रेविटी और स्प्रिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हमने देखा, दीज आर पाथ डिपेंडेंट फोर्सेज. जितना बड़ा पाथ होगा उतना उसमें एनर्जी लॉस होगा, उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी स्पेंड होगा, बिकॉज वी नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द एनर्जी स्पेंडर्स, दे डोंट स्टोर द एनर्जी. ठीक है, सो friction, drag forces, all these are the non-conservative forces or the path dependent forces. And in this अगर closed loop है, so in that cases the work done by non-conservative force is not 0 if it's a closed loop. अगर मैं 1 से 2 कोई पार्टिकल लेके जा रहा हूँ and then I'm bringing it when I'm taking it from 1 to 2, there will be a second वाले केस में more path length होगा, so more drag मिलेगा, so work done यहाँ पे the work done will be more in second case than in first case. Work done will be more in second case. Okay, work done will be more because ज़्यादा लंबा है ना, mass this length will be increased. So because my forces जो भी मेरी ये दोनों forces हैं, that depends on if you say the friction force also and this also, they both depend on the path. Okay, जितना बड़ा path होगा उतना ज़्यादा loss होगा उसमें, जितना ज़्यादा friction होगा जितना बड़ा path होगा. ठीक है, so in this case we can say non-conservative forces are my energy spender. We lose the energy, there is no energy stored into it, so whatever the energy has been going from here to here, that's been lost here, right? So these two are my non-conservative. हम लोग जो पढ़ेंगे non-conservative forces, friction forces mostly पढ़ेंगे, drag forces नहीं पढ़ेंगे, friction forces we are going to study in a non-conservative forces. Then these are पार्ट डिपेंडेंट. दो जो इनमें क्वालिटी होती हैं, दीज आर पार्ट डिपेंडेंट. अगर मैं वो यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ पहले पे और यहाँ से यहाँ तक पे लेके जाऊँ, अगर दोनों का वर्क डन मेरा सेम नहीं आ रहा है, सो आई कैन से दीज आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. इन दोनों का वर्क डन सेम आना चाहिए 1 से 2 तक ले जाने में और 1 से 2 तक इस वाले पाथ के थ्रू ले जाने में, सेकंड पाथ के थ्रू, दोनों में वर्क डन सेम आना चाहिए. सेम वे अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और वापस लेके आ रहा हूँ, सो इस केस में मेरा एनर्जी जो सपोज इस केस में एनर्जी गेन हुआ, वो एनर्जी गेन मेरा कम हुआ एनर्जी गेन मेरा, और इस केस में एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा बिकॉज द पाथ लेंथ इज मोर. ठीक है, एनर्जी लॉस मेरा ज़्यादा हो जाएगा. सो बट अगर मेरा यही चीज़ मेरे कंजर्वेटिव फोर्स होते थे, जितना मेरा यहाँ पे एनर्जी गेन होता, पाथ में कोई भी ले लूँ सेम एनर्जी लॉस होता. ठीक है, सेम एनर्जी लॉस होता, सो नेट विल बी 0. यहाँ पे नेट इन द क्लोज्ड वन विल नॉट बी 0. So that is what my conservative forces and non-conservative forces. Conservative forces, 3 special thing is path independent होती है, closed path में network done 0 होता है, and third one is it depends on initial and final position only. 3 conservative forces, gravity, spring and electrostatic. So these are the energy savers we have seen in this case. Okay, if you stretch it, the energy got stored. When you release it, then you'll get the energy back into the motion. ठीक है, same way if you lift a book from here, if you lift a block from here to here, so the energy got stored up to this point. If you remove this surface को आप remove कर दो, then the energy will be released in terms of motion. ठीक है, but same will not be there in air drag. ठीक है, same will not be there in air drag. अगर मेरा air drag है, then in the air drag the energy gain will be less. ठीक है, अगर air drag है तो, या मेरा फ्रिक्शन है तो जो भी मेरा लॉस होगा फ्रिक्शन का, दैट कैन नॉट बी गेन बैक. ठीक है, फ्रिक्शन के केसेस में हमने देखा था दैट लॉस विल बी द इफ यू द फ्रिक्शन इज देयर, द ब्लॉक विल नॉट गेट बैक टू इट्स ओन पोजिशन एज इट वॉज देयर इन द स्प्रिंग केस. ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर विल सी के इस क्वेश्चन में हमारे को सेइंग
कि एक फोर्स दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमारे को फोर्स दे रखी है, इट इज़ वेरिंग फोर्स. ठीक है, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट. पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस की हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट इज के क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होना चाहिए. सेकेंड इज के इट शुड हैव वर्क डन थ्रू ऑल द पाथ्स सेम होना चाहिए उसका. ठीक है, यहाँ पे हमारे को देखा ये पाथ O2 ये O से C तक जा रहा है एंड थ्रू 3 पाथ्स, 1 2 एंड 3, ये 3 पाथ के थ्रू ये जा रहा है. यहाँ पे इन तीनों पाथ्स के थ्रू ये जा रहा है. सो आई हैव टू फाइंड आउट कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है. कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग देखेंगे कि इस पाथ के थ्रू वर्क डन, इस पाथ के थ्रू वर्क डन और इस पाथ के थ्रू वर्क डन. इन तीनों पाथ के थ्रू वर्क डन मेरा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर ये सेम आ रहा है देन आई कैन से इट द फोर्स इज कंजर्वेटिव. अगर सेम नहीं आ रहा आई कैन से फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव. So now force is varying. I'll have to do the small work done. I cannot do the work done because the force is varying with x and y. So small work done we have taken for the small distance ds. So dx we have taken ds as dxi dyj. Small displacement f मेरा ये आ गया and small displacement we have got from 0 to 5. ठीक है, through so this we have done the integration. So this is my इक्वेशन ऑफ वर्क की इक्वेशन आ गई. ठीक है, दिस माई वर्क इक्वेशन. नाउ आई टेक फ्रॉम ओ ए वर्क डन फ्रॉम ओ ए टू सी निकालते हैं. ठीक है, पहले ओ ए का पाथ देखते हैं, फिर ए से सी. ओ ए के पाथ में देखते हैं. ओ ए के पाथ में मैं एक्सेस टेकिंग फ्रॉम 0 to 5. ठीक है, ओ ए में डी वाई इज 0 इन दिस व्हेन आई एम टेकिंग इट हेयर. डी वाई इज माई 0. ओके, वाई इज माई 0 एंड जब मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ वाई की वैल्यू भी 0 एंड डी वाई भी 0. आई जस्ट पुट दिस टू वैल्यू इन इक्वेशन दिस. ठीक है, dy is 0 that means this will get 0 and y is 0 this will get 0. so my work done from here to here will comes out to be 0. ठीक है, अब इस वाले केस में देखते हैं. मेरा इस वाले केस में dx is 0. यहाँ से यहाँ तक में नो चेंज इन x आ रहा है तो dx will be 0 and x is 5 here. ठीक है, x की वैल्यू is just 5 here and y की वैल्यू varying from 0 to 5. so now we put all these three things in this equation. so dx is 0 means this will get 0. x की वैल्यू मैंने 5 डाल दी because x is 5 here this point. so it is 25 x square into dy is ring from 0 to 5 dy. so I just do the integration y. so 0 to 5 put the value of y so it comes out to be 125. so यहाँ से यहाँ तक मेरा 0, यहाँ से यहाँ तक 125. now we'll see the work done in OC. ठीक है, work done in OC देखते हैं. OC का मतलब क्या है यहाँ पे. this is 5 into 5 so this is x is equal to y. so that is what we are going to put it in this equation. x is equal to y for this OC. ठीक है, यहाँ पे I just put here x and I just put dy as dx. so मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी इन दिस पाथ OC x is equal to y पुट करने के बाद 0 to 5 इसकी जगह मैंने x रख दिया, इसकी जगह भी x रख दिया. so 2x plus x square dx जिसकी वजह से मेरा वर्क डन आ रहा है. if I put the value of x as 0 to 5 work done comes out to be 200 by 3. so we have seen two different path, two different work done is coming in. so we can say the force is non-conservative forces because this work done is 200 by 3 and here in this path the work done comes out to be 125. so that's why we can say कि path change हो रहा है. so my work done is changing so I can say force is non-conservative. अगर दोनों केस में मेरा same work done आता I can say only conservative, right? so one way is to view this is this. another way is to view this is to take a cross product with its del vector and we'll call it a curl. so जो भी मेरा force है I'll take a cross product हमने देखा था that is responsible for the turning for the rotation. so we'll take a curl of this force field. if it comes out to be 0 we can say it is a conservative force. and how we will take it that is that formula for this is we call a del operator. so cross product of this force which we are having, cross product of this force with this del vector, if it's coming out to be 0 then we can say the force is conservative. so what is this del vector means कि अगर कोई मेरा फील्ड है so whether this field is having tendency of curl around की टेंडेंसी है या नहीं है. ठीक है, जैसे मेरा फील्ड होता है if the field is in this direction. ठीक है, so there is no curling tendency, it is just the straight line. ठीक है, अगर मेरा फील्ड ऐसे है if it's curling around, if my field is curling around, so in that case I can say कि field is ऐसा है तो I can say there is no curling around, the force will be non conservative. अगर मेरा field में जो मेरा field we are going to study later on, we have not studied the field
बट यू कैन से इट फोर्स. सो राइट नाउ यू कैन कंसिडर फोर्स. अगर वो ऐसे टर्न अराउंड हो रहा है, अगर मैं कोई यहाँ पे इफ हाउ टू नो वेदर इट इज टर्निंग अराउंड, इफ आई कीप अ स्मॉल block here, so because of this force it is having a tendency to turn around. ठीक है, टर्न अराउंड. सो ये टर्न अराउंड करेगा, इट इज़ हैविंग ए टेंडेंसी. तो कर्ल फोर्स फील्ड है वहाँ पे, और कर्ल फोर्स फील्ड जहाँ पे भी होगा वो कंजर्वेटिव फोर्सेस में कर्ल फोर्स फील्ड मेरा जीरो होता है. हाउ, विल सी. सपोज दिस इंक्लाइन प्लेन इज देयर. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन इज देयर. इफ माई कर्ल, इफ माई फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर मैं एफ जी कंसिडर करता हूँ, अगर मैं इस बॉल को इफ़ आई टेक इट इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से पहले ए से बी लेके गया और फिर बी से ए लेके गया. ठीक है, और मेरा देयर इज़ नो कर्ल हेयर. ठीक है, मेरा फोर्स में कोई कर्ल नहीं है, बस जस्ट एफ जी, मेरा एफ जी लग रहा है इस पर, एंड एफ जी विल सी देयर इज़ नो कर्ल इन द एफ जी. सो मैं जो ए से यहाँ तक लेके गया, व्हाट इज़ माई वर्क डन फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट विल बी ये जो मेरा डिस्टेंस होगा, सपोज दिस डिस्टेंस ट्रेवल इज एस, तो यहाँ से नीचे फोर्स लग रही होगी इस पर एम जी साइन थीटा इंटू एस. सेम वे जब मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, इस पर यहाँ पे लग रही होगी माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस. तो ये दोनों कैंसिल होकर इट विल गिव मी जीरो. सो आई कैन से द कर्ल ऑफ दिस एफ जी फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो. सो एफ जी फोर्स इज माई एफ जी जो मेरा, जिसकी वजह से फोर्स फील्ड आ रहा है, एफ जी इज़ माई कंजर्वेटिव फोर्स. अगर फॉर इंस्टेंस मेरी जो कोई भी फोर्स और होती, उसके अंदर यहाँ पे कर्ल होता, सपोज ये फोर्स ऐसे लग रही होती यहाँ पे. ठीक है, अभी हमारी जो एफ जी थी विच वॉज देयर इन दिस डायरेक्शन ओनली, एम जी साइन थीटा. ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई एक फोर्स होती, गिवन फोर्स, इसके अंदर कर्ल होता, ये फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में वेरी कर रही होती. अगर मैं मैं एक किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी पे लेके जाता, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मेरी फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. अगर मैं ऐसे लेके जा रहा होता, सो माई वर्क डन विल कम्स आउट टू बी, यहाँ से यहाँ तक में वर्क डन कम्स आउट टू बी ये पाथ लेंथ एस. ठीक है, इनटू जितना भी ये मेरा फोर्स आ रहा होता. सेकेंड केस में ये पाथ लेंथ. ठीक है, बट मेरा यहाँ पे दैट विल बी द फोर्स विल बी, यहाँ से यहाँ तक लेके जाता, इस केस में भी फोर्स विल बी पॉजिटिव. फोर्स अगर मेरा ऐसे ही डायरेक्शन में मेरा कर्ल होता ना, ये डायरेक्शन तो मेरी सेम ही है, इसी डायरेक्शन में मेरा कर्ल होता. सो यहाँ से अगर मैं ए से बी तक लेके आता, तब भी मेरा पॉजिटिव रहता वर्क डन. यहाँ से यहाँ तक रहता, तब भी मेरा पॉजिटिव रहता. सो नेट वर्क डन मेरा जीरो नहीं होता कभी भी, जब भी कर्ल फील्ड होता है. कर्ल फील्ड मतलब अगर मेरा कर्ल ऑफ द फोर्स फील्ड अगर मेरा कोई वैल्यू आ जाए, देन आई कैन से कि उस पोजिशन पे देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ टर्निंग अराउंड. ठीक है, देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ टर्निंग अराउंड उस पोजिशन पे. सो वी कैन से कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का टर्न अराउंड यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस का कर्ल हमेशा जीरो होता है. सो दे ऑलवेज बीन लाइक दिस ओनली. ठीक है, देयर इज़ नो टेंडेंसी ऑफ कर्लिंग अराउंड. Okay, so maybe in the next lecture I'll put across a image where I'll could able to show it visually कि curling of field क्या होता है and gradient of field क्या होता है. That I'll show it in the next lecture. I'll give you a bit that will help you in visualizing in a better sense. But right now just try to explain it, but just it is kind of a higher level of physics, so it will be difficult for you to comprehend right now. So anyways, just see this thing कि कर्ल कैसे निकालते हैं. कर्ल यू could able to find it out easily. So अगर कोई डिफिकल्ट फोर्स दे रखी है, आपको नहीं पूरा ये प्रोसेस करना, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला क्या है, कर्ल ऑफ अ फोर्स निकालते हैं. अगर वो जीरो आ रहा है, वी कैन से इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड. कर्ल क्या होता है, तो इट्स इज जस्ट नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट. हमने ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट देखा हुआ है. और कर्ल हम लोग लिखते हैं डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल बाई डेल जेड. कर्ल हम ऐसे लिखते हैं. और ऑलरेडी हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा हुआ है, कैसे लिखते हैं, आई जे के, ये डेल का इसका कैसे लिखते हैं, डेल बाई डेल. सो ये वाला जो होता है इसको ये ऐसे होता है, डे बाई डी एक्स आई प्लस डी बाई डी एक्स जे. सो ऐसे होता है. सो यहाँ पे इसके नीचे इसका ये आ गया, फिर ये डी वाई डी जेड, और यहाँ पे जो भी फोर्सेस होंगी एफ एक्स एक्स वाई एफ एस. और यहाँ इस केस में हमारी एफ एक्स जैसे ये है 2y, और एफ वाई मेरी ये है, एफ जेड मेरी 0 है. सो वी कैन पुट दैट वैल्यू हेयर. एंड हम लोग जैसे नॉर्मल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट इन द सेम मैनर. जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, यहाँ पे आई हमने ऑलरेडी वेक्टर वाले केस में देखा था. आई को लेके इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जे को लेंगे, माइनस जे को लेंगे, माइनस जे इसको हटा के पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस. ठीक है, फिर के का लेंगे,
पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, और इन तीनों को करके इफ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी जीरो देन वी कैन से। सो हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें आई जे के फोर्सेस थी हमारी, सी फोर्सेस इज 2y I and x स्क्वायर, 2y and x स्क्वायर, यहाँ पे ज़ीरो, डेल एक्स बाई डेल वाई, ओ सॉरी डेल बाई डेल एक्स, डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, आई जे एंड के। सो डेल बाई डेल एक्स का मतलब होता है आई हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो भी वेरिएबल होंगे आई जस्ट कीप इट कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। अब यहाँ पे डेल एक्स बाई ये अगर मैं डेल बाई डेल एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ करूँ, सो इट इज़ एक्स के साथ ही करना है, सो 2x आ जाएगा यहाँ पे। इसमें इसके साथ करूँ दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस वाई, दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस 2y, ठीक है। अब इसके साथ करूँ तो यहाँ पे कोई z का कंपोनेंट नहीं है, सो दैट विल बी ज़ीरो, यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो होगा इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ करूँगा मैं k के साथ, सो k के साथ ऑलरेडी दोबारा देख लेते हैं, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पे था मेरा 2y एंड एक्स स्क्वायर और ज़ीरो, ठीक है। पहले हम i को लेंगे, i को इसको कांस्टेंट लेके इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे, ठीक है। इन दोनों में क्या है, ज़ीरो हो गया, इसका कितना होगा, डेल वाई डेल जेड की कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज़ कांस्टेंट, आई कैन से दिस इज़ ज़ीरो, ओके। सो इट इज़ सपोज मेरा डेल बाई डेल जेड, इफ़ आई एम टेकिंग डेल ओवर डेल एक्स का मतलब क्या होता है ना, अगर मेरा ये सपोज दे रखा है एक्स वाई, एफ इजिकल टू एक्स वाई दे रखा है, सो आई हैव टू फाइंड आउट डेल ओवर डेल एक्स निकालना है। सो आई विल डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग द अदर टर्म एज कांस्टेंट। तो वाई को मैं यहाँ पे कांस्टेंट रख दूंगा, वाई इंटू, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल कम्स आउट टू बी वन। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई का इसका मैं डेल ओवर डेल वाई करूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करूँगा, ये एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी माई कांस्टेंट, सो एक्स स्क्वायर इंटू डेल ओवर डेल वाई किया मैंने, दैट कम्स आउट टू बी वन, सो माई वैल्यू विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेल एक्स ओवर डेल वाई। सो इस क्वेश्चन में अगर देखें, सो इसके अंदर अगर मैं इसका डेल इसका मैं इस पूरी फोर्स का डी ओवर डी एक्स करता हूँ, इसमें ये वाली टर्म मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। सो 2y का अगर मैं करता हूँ डेल ओवर डेल एक्स, सो y विल बी कांस्टेंट, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन विल कम्स आउट टू बी माई ज़ीरो, सो दिस ज़ीरो। सेम वे अगर एक्स स्क्वायर का करता हूँ, एक्स स्क्वायर का मैं डेल एक्स करता हूँ, सो इट विल कम्स आउट टू बी 2x, ठीक है। अब मैं डेल वाई करता हूँ इन दोनों का, सो 2y का एफ इजिकल टू 2y प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मैं डेल वाई करता हूँ, इट विल बी ये y है, देन इट विल कम्स आउट टू बी 2 प्लस ये इसका क्या, इसका कितना होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर, इट विल कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर कॉमन, और 1 का कितना होगा डेल वाई ज़ीरो, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज जो भी जिसके थ्रू करना है, जैसे एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू दे रखी है अगर मेरी एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर मैं डेल ओवर डेल एक्स करूँगा, सो दैट मीन्स एक्स का करूँगा इन दोनों को कांस्टेंट लेके, ठीक है। इसको बाहर निकाल दिया मैंने, वाई जेड कर दिया, इंटू एक्स का किया, एक्स का डेल ओवर डेल एक्स किया, 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा आई। सेम वे जे, सेम वे के, ऐसे करना होता है इसमें, ठीक है। सो क्या करूँगा ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई टेक आउट वन क्वेश्चन टू सॉल्व आउट विद दिस del v over, so taking the del of f, and we can see कि whether the force is conservative or non conservative। तो इसके अंदर हमारा सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ही है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन वेक्टर लेक्चर। सो आई जे के, और यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू आप डाल दो, सेम ऐसी वैल्यू एफ एक्स और एफ वाई की, ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स, ये एफ वाई हो गया, जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एफ एक्स एंड एफ वाई एंड डू द क्रॉस प्रोडक्ट, आई को रख के इन दोनों को सेम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और डेल एक्स और डेल वाई का मतलब ये होता है कि अगर कंपोनेंट मेरा मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड है, और विद एक्स कर रहा हूँ, तो वाई जेड मेरा यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर निकाल दूंगा और एक्स के रिलेटिव करूँगा मैं, ठीक है। दैट इज़ हाउ वी हैव टू डू, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी विल कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, विल सी द पोटेंशियल एनर्जी रह गया हमारा, क्वेश्चन है गए, देन ओके कंजर्वेटिव, राइट, विल सी द पोटेंशियल एनर्जी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दिस
काफ़ी चीज़ें रह गई थी. We'll take a quick review. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया. Today we have studied, I'll write it down. Okay, we'll do it next lecture. This will do it in next lecture. Kinetic energy देख लिया हमने. We have covered the kinetic energy. We have seen work energy theorem. Kinetic energy में we have seen के because our velocity is depending upon the observer. So with that, what is the change coming in? So that we have seen the work energy theorem. Work energy theorem में we have seen how initially अगर मेरे पास कुछ motion energy है plus if we apply the work done by all the forces and how my final kinetic energy will be there. So with that relation we have solved multiple questions. और फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का मीन जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द energy savers. That means कि because of conservative forces, if you apply a force against the conservative force, the energy gets stored into it and that energy can be utilized later on. But the same will not be true in non-conservative forces. If you apply an external force against the non-conservative force, energy will get lost and you will not get that energy back in future. So that is the difference between them. So potential energy is it's been defined in terms of in context of conservative forces only. So we are going to cover up in next lecture this potential energy. Okay, that we are going to cover up in next lecture. Right. So this is all for today. दो चीज़ें हैं that we are going to cover. I'll bring one question on this and I'll try to bring one image where it will show your del this one del v this del vector का. We'll see कि curl of the field क्या होता है, the gradient of the field क्या होता है. I'll try to bring some image to show this thing, what is the curl of image, and I'll bring one question where we can solve this del vector and how the conservative force comes out to be 0. So you can do it. It's an easy way. You can solve the problem quite fast. Okay. So that's all for today. Right. I'll meet you up in the next lecture. All right. Thank you.